देश का असली राजा कौन है? आप। अरे आप मतलब हम सब। पता का बाहर निकले आज क्राउन पहन लिए कि हम राजा हैं देश के। और पिताजी कहते थे ये तो बात सही है, हिस्ट्री पढ़ के नौकरी नहीं मिलती, लेकिन हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं। आज अमेरिका सुपर पावर है, किसकी वजह से? एप्पल की वजह से। उस सुपर पावर को टक्कर कौन दे रहा है? वन प्लस किसका है? चाइना का। एप्पल वन प्लस के पीछे कौन खड़ा है? लावा। और एक हमारे पड़ोसी मुल्क है, ना उनके पास एप्पल, ना उनके पास वन प्लस, ना उनके पास लावा। वो लावा बॉम्ब बनाते हैं। कुछ लोग नेता भी बन जाओ यार। मैं तो देखता हूँ अजीब नशा इस देश में, जहाँ जाओ सबको आईएएस बनना है। तो चूंकि तुम सारे पढ़े लिखे लोग आईएएस बनने जा रहे हो, तो वहाँ संसद में जगह खाली हो जा रही, बाकी लोग वहाँ चले जा रहे हैं। कहते डर के आगे जीत है, डर के आगे डिप्रेशन है। डर के आगे कहाँ जीत है? जाओ कभी कब्रिस्तान में 2 बजे रात में चेक करो, डर के आगे जीत है कि नहीं। और तुमने किसी से कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूँ, हाँ बोले कर लो। तिवारी जी की बिटिया दे रही थी, 2 बार थी, पागल हो गई उसके बाद। जो तुम्हें उलझा रहा है उसको चंद्रयान 4 में बैठाओ। वह पद क्या पति कुशलता क्या, जिस पद पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। A very delightful morning to one and all present here. Honorable guest, Agar Pratap Ojha sir, Mr. Safyasu sir, Director of ICRA IAS, Mr. Satin sir, Respected and Secretary Principal sir, Professor Joseph Daniel, Vice Principal ma'am, Professor Sabina Bodra, Admiral Faculty, and my dear friends. I, Vaishnavi Deshar, and I, Sundaram Mishra, representative of Career Counseling Cell, welcome you all in this enlightening session of how to prepare for civil services exam. We shall begin this enriching journey by praying the goddess Saraswati to bestow us with blessing and knowledge. I kindly invite our esteemed dignitaries to please come on the stage for the ceremonial line planting and formally inaugurate this event. मेन बोलने का उन्हीं का है यार, मेन हम लोग कुछ नहीं है। I would like to request our principal sir and Ujjwal to please welcome our sir with a planter. I would like to request Vice Principal ma'am and Vivek to please come Director Fashion sir with a planter. Now I would like to request Professor Neelkamal ma'am and Krishna to welcome Satin sir with a planter. Now I would like to request Prachi to please come and welcome our principal sir with a planter. Now I would like to request Anuradha to please come and welcome our vice principal ma'am with a planter. Thank you so much. Now to welcome this gathering and set the tone for today's discourse, I would like to invite our virtuous Principal and Secretary of Christ Church College Governing Body, Professor Joseph Daniel sir. His visionary leadership and unwavering commitment have always been a guiding and light for the institution. Sir, please. Good morning. So my dear children, you are getting another opportunity to interact with one of the wonderful personality of not only Kanpur, of our country, that is Mr. Awadh Ojha. I don't need to give any explanation about him. I hope you all maybe heard about him or some of you may be knowing. ऐसे किसी ने अभी सिर ऐसे हिला रहे हैं, इसके मतलब है कि आप इनको जानते हैं. So it is again I am telling you, we are here to give you various opportunities for an all-round development. We don't want you to become a book termite. You have to develop your own abilities. And you are coming here or you join this institution to become a graduate or maybe to a postgraduate. Each one of you have an option. Or you may be thinking about what you will do after completing this graduation. So, some of you may be seeking for a job
some of you may be thinking of creating jobs, and very few may be thinking to go for high studies, maybe graduate research and further postgraduate research, and so on, to elaborate or to increase your area of searching a profession. So, in this profession also there are so many professions are there: skilled, unskilled, administrative, technical. So, one of the very, very attractive profession it's not teaching, it is the administrative service. So you may all have a dream. जैसे स्कूल में से ही शुरू होता है और यहाँ आने के बाद भी अभी भी होते होंगे. Not only you, your parents may also have a dream for you. And what is the dream? The very attractive administrative job that they want to see you as even we as a teacher, we also want to see you as an administrative officer. You all know that some of our, even when I was doing my graduation and post-graduation followed by research, some of our friends also are still working in the administrative service as a very senior positions. So, as thing, if you go through our alumni list also, you can see n number of people, not only 1, 2 or 3. Many of our alumni are the shining star in the area of administrative service. So the problem is not getting a simple administrative service. It has a lot of responsibility, right? They are the people they execute. It starts from the beginning as a district collector to what happened the cabinet secretary or something beyond that. So इतनी attraction होता है, उतना उसका responsibility भी होता है. जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स उसको एग्जीक्यूट करने का काम उनके पास है. सो इतना सिंसियरिटी से उनको काम करना पड़ता है. इसके अलावा दे आर आंसरेबल टू द पब्लिक. हम ईच वन को वो आंसरेबल है. सो उसका काम उतना छोटा नहीं है. जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाते हैं उतना उसका सिलेक्शन भी टफ होता है. जैसे वेरियस लेवल होता है, preliminary test, then what happened, the optional paper, then followed by interview, and then of course finally the training, then giving you appointment to a particular place of India which is sometimes not known to you. So इतनी मतलब tedious procedure follow करने के लिए you need a mental makeup. The selection process is in such a way that only what happened intellectually and mentally able person will be getting selection. So academic excellence के साथ साथ में आपको एक mental makeup भी चाहिए. So इस तरह की एग्जामिनेशन में तैयारी करने के लिए ये कोई क्लासरूम टीचिंग से कंप्लीट नहीं होता है. यू नीड डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स, यू नीड इंटेंसिव व्हाट हैपन प्लानिंग, बिकॉज द टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. जैसे आपको कोई ऑब्जेक्टिव पेपर देता है, वो पेपर एक गिवन टाइम में आप कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, दैट इज कॉल्ड द टाइम मैनेजमेंट. collection of materials, time management, and then a serious intensive preparation. So you need a mentor to go for or to just try for this type of selection process. So here we are fortunate to have a person. He will interact with you. He will give you the tips of how to prepare, where to collect, and what you have to do if you are dreaming for going to a civil service. And I wish you all the best. So each and every one of my graduate students are allowed to dream big. Thank you very much. I welcome Mr. Oda for our campus. Thank you very much. Thank you so much, sir. अनु
अनुपम सृजनता सिद्ध जिनके आभास में कीर्ति का वर्णन अतीत अपार है, ऐसे श्रेष्ठ शिक्षक एवं आज के हमारे मुख्य अतिथि ओझा सर, कैरियर काउंसलिंग सेल एवं क्राइस्ट चर्च महाविद्यालय आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता है एवं आपके आतिथ्य को अपना सौभाग्य भी समझता है। आप केवल एक शिक्षक मात्र ही नहीं बल्कि एक कुशल मार्गदर्शक, मेंटर, समाज सेवक एवं अनगिनत युवाओं की प्रेरणा है। आप इकरा IAS जैसे उत्कृष्ट संस्थान के सह-संस्थापक एवं सिविल सर्विस की तैयारी के लिए मुख्य रूप से इतिहास वैकल्पिक विषय के अध्यापक हैं। आपने साल 2019 में पुणे महाराष्ट्र में इकरा IAS कोचिंग की शुरुआत की। आपने इससे पहले वाजीराम एंड रवि एवं नेक्स्ट IAS में भी अध्यापन कार्य किया। 15 वर्षों से भी अधिक शिक्षा जगत में आपका यह योगदान सचमुच अनुकरणीय है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सर से आग्रह करूंगा कि वे मंच पे आएं और हमें अपने आप को संयमित रखकर सिविल सर्विस की तैयारी में किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, UPSC के वास्ट सिलेबस में अपनी पकड़ को किस प्रकार मजबूत करें एवं वैकल्पिक विषय का चुनाव किस प्रकार से करें, इन सभी विषयों पर प्रकाश डालें। आदरणीय ओझा सर। A very hearty good morning to all the dignitaries of this college and my dear students. First of all, I want to thank Principal Sir and Vice Principal Ma'am and all the staff of this college sitting here. And you should also be personally thankful to all these people after this session, because all of you should personally go to your principal after the session. Because once a principal takes this type of decision to invite the people from outside, for you it may not be a big decision, but for us it's a very big decision. मतलब जो लोग आपको खुद इतना रास्ता दिखा सकते हैं वो दूसरों को बुलाते हैं आपको बताने के लिए, क्योंकि डॉक्टर अपने घर का इलाज नहीं कर सकता। ये सारे खुद इतने ही पढ़े लिखे लोग हैं, प्रिंसिपल हैं, आपके टीचर हैं, लेकिन वो सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि डॉक्टर अपने घर का इलाज नहीं कर सकता। तो आप पर्सनली इस सेशन के बाद आप सारे लोग एक एक करके, ऐसी भीड़ नहीं जाएगी ऑफिस में, और एक हफ्ते में आप सब अपने प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल, आपके जो टीचर्स हैं, सबको आप थैंक यू बोलें इस सेशन के लिए। सर ने बड़ी अच्छी बातें कही, प्रिंसिपल सर ने आपके, उसमें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि सिर्फ क्लास स्टडीज से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको अपना मोबाइल अपने जेब में रखना पड़ेगा। वो कहना भूल गए थे, ये वाली लाइन वो कहना भूल गए थे, ये मैं कह दे रहा हूँ। ये जो आपने अपने हाथ में मोबाइल ले रखे हैं, आप देखो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ होकर पड़ा हुआ है, क्योंकि ये तैयारी इतनी ज़बरदस्त तैयारी है और पर्सनालिटी सबसे इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ जहाँ पे आप मिस करते हो, कितने लोग सीरियसली IAS बनना चाहते हैं? सभी बनना चाहते होंगे, ऐसा थोड़ी है। इधर से कोई हाथ नहीं उठा रहा, इधर से सीरियसली क्या नाम है तुम्हारा? खड़े हो जाओ। जितने लोगों को IAS बनना है वो मोबाइल से दूरी बना लें। नहीं बनना है वो तो खैर कोई बात ही नहीं, चैनल चलाना है और पत्रकार बनना फिर तो कोई बात नहीं। G20 का समिट चल रहा है, 5 स्टेट हेड के नाम बताओ जो दिल्ली आए हैं। अरे आज से ही शुरू हुआ है, देखो लाइव देखो, टेंशन लेने ये सबकी प्रॉब्लम है। वो तो फंस गई बेचारी, आगे बैठी थी, हाथ उठा लिया उसने, वो बेचारी ट्रैप में आ गई। कोई बात। ये सबसे पहली ज़रूरत है। कोचिंग तो आप बहुत बाद में जाओगे, ये सबसे पहली ज़रूरत है अवेयरनेस। आपके कॉलेज का नाम है क्राइस्ट चर्च कॉलेज। आपने कभी सोचा कि जीसस को क्राइस्ट क्यों कहते हैं? कोई ट्राई करेगा यहाँ जो यहाँ पढ़ रहा है? क्यों मानते हैं उन्हें क्राइस्ट? ये पता है ये क्यों घटना घट रही है? आपके अंदर जो सबसे बड़ी चीज मिसिंग है, जिस पर आप ध्यान नहीं देते, जिंदगी में जो भी लोग परेशान होते हैं वो बहुत छोटे रीजन से होते हैं। ये मेरे अपने जीवन का बड़ा व्यक्तिगत अनुभव है कि जितने लोग, मेजॉरिटी पीपल हु आर सफरिंग इन दिस वर्ल्ड, दे आर सफरिंग बिकॉज ऑफ वेरी माइन्यूट रीजंस। बहुत छोटे कारण है, छोटे। अब G20 आपके सामने हो रहा है, इतनी बड़ी घटना घट रही है, आपको उस पर एक नोट्स बनाना चाहिए था। कब शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई,
चलो ठीक है 20 कंट्रीज आप नहीं याद कर सकते, कोई बात नहीं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोई बताएगा हेडक्वार्टर? कहीं नहीं है, उसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है। जो कंट्री जिस साल लीड करती है वही उसका हेडक्वार्टर होती। किसको ऐड किया आज G20 में किसको ऐड किया? अफ्रीकन यूनियन को। किस बेसिस पे? अब इतने बड़े बड़े स्टेट हेड आए हैं। अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट कितना खुश है इंडिया आगे, कल बेचारे डांस कर रहे थे। जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो उनके वेलकम में जो हमारे यहाँ का डांस हो रहा था, ही स्टॉप्ड देयर एंड ही हिमसेल्फ स्टार्टेड डांसिंग। ही सेड आई विल आल्सो डांस। अल्बर्टो एंजल फर्नांडिस, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। जस्टिन ट्रूडो कुछ दिन पहले भारत से बहुत नाराज चल रहे थे, कैनेडियन स्टेट हेड। कम से कम ऋषि सुनक जी का नाम तो याद कर ही लेते। बार बार कह रहे हैं हम भारतीय, हम भारतीय, कहीं वो ब्रिटेन का नाम हिंदुस्तान न रख दे। तो दो चार ये तुम्हारी अवेयरनेस जो है ना, अवेयरनेस, ये तुम डेली प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होगी। अगर तुम एक दिन 5 न्यू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो मिनिमम, एक डायरी बनाओ, और न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स टू गेट द इंफॉर्मेशन। मतलब डेमोक्रेसी जिस कंट्री में हो वहां का लड़का या आदमी न्यूज़पेपर ना पढ़े तो वहां डेमोक्रेसी कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। व्हाट इज अ न्यूज़पेपर? टू इन्फॉर्म द किंग्स। हु इज द किंग ऑफ दिस कंट्री? पीपल। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। इस देश का असली राजा कौन है? आप। अरे आप मतलब हम सब। पता का बाहर निकले आज क्राउन पहन लिए कि हम राजा हैं देश के। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए पार्लियामेंट में 545 लोकसभा में। तो जब ये कोई काम करते हैं तो प्रेस नोट रिलीज करते हैं। वो प्रेस नोट फिर न्यूज़पेपर में आता है टू इन्फॉर्म द किंग्स, जनता को अवगत कराने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपके रिप्रेजेंटेटिव्स क्या कर रहे हैं। आपसे मतलब ही नहीं है। अरे आप करो तो तुम जो मन चाहे करो, हम रील बना रहे हैं। इतना अच्छी बात है, रील बनाना भी अच्छी बात है। बड़े सारे मैं देखता हूं, एक चैनल है वो, तो मैं तो उसका एडिक्ट हो गया हूं, स्पेस चैनल, गैलेक्सी, स्टार, लाइट ईयर, डिस्टेंस, बड़े सारे इंफॉर्मेटिव चैनल भी हैं। एंटरटेनिंग तो है ही, इंफॉर्मेटिव। तो जीवन में कोई चीज बुरी थोड़ी है, पर आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हो। सबसे पहला आप सारे लोग एक काम करो, एक कॉलेजेस जो थे, कॉलेजेस वो नेशनलिज्म के बेस हुआ करते थे। अभी सर ने एक बात कही, बड़ी सारी बातें, उन्होंने कहा टीचिंग इज नॉट अ गुड प्रोफेशन, एक्सलेंट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। सबसे आईएएस नीचे है टीचिंग से। अगर सबसे बेस्ट प्रोफेशन दुनिया में कोई है तो वो है टीचिंग। बस टीचर को थोड़ा ऐठन में रहना चाहिए। हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं दुनिया में। हिंदुस्तान के इतने लिबरल टीचर्स हैं, इतने, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबको एंटरटेन करते हैं। आप कभी यूएस जाओ, आप कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, वहां के टीचर्स वहां के पॉलिटिशियन वगैरह से बात नहीं करते कि ये फाइनेंस मिनिस्टर, इधर आओ फाइनेंस मिनिस्टर। वो क्रिएटर है ना, जो क्रिएटर है। इस कॉलेज से कितने लोग आईएएस बने होंगे, कितने लोग नेता बने होंगे। तो जो फैक्ट्रियां होती हैं वो किसी चीज को क्यों प्रेशर लेने लगेंगी। और शुरुआत आपसे होगी। पहला काम आप ये करो, कोई पॉइंट आप डायरी में जाके लिखो कि मुझे अपनी अवेयरनेस लेवल को इंक्रीज करना है। पर डे 5 न्यू इंफॉर्मेशंस पर डे। अब अगर तुमने ब्राजील को पढ़ा कि भाई अल्बर्टो एंजल फर्नांडिस वहां के स्टेट हेड है, तो ब्राजील है कहां, उसकी कैपिटल क्या है, किस चीज के लिए फेमस है। 5 इंफॉर्मेशन, सिर्फ 5, यानी एक महीने में कितनी 150, यानी 10 महीने में कितनी 1500, एक साल में 1800, 10 साल में 18,000। हमसे लोग पूछते हैं यार तुम इतना कैसे जानते हो, एक दिन का नहीं है।
मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा, पूरा हवाई जहाज में R&D कर डाला मैंने, कहाँ बना, कैसे बना, बोइंग कहाँ की कंपनी है, ये इंडियन जो प्लेन कंपनीज है कहाँ से प्लेन हायर करते हैं, पायलट्स का रोल क्या है, हो गया। तो क्यूरियोसिटी मिसिंग है तुम्हारे में। सबको एक तो स्टेटस का शौक हो गया है, व्हाट्सएप अपडेट करना है, फेसबुक अपडेट करना है। क्यों करना है? अवेयरनेस बढ़ानी। पहला काम ये करना है, अवेयरनेस बढ़ानी, अवेयरनेस। मैं देखता हूं हमारी तरफ से लोग आते हैं, यूपी से लोग आते हैं, बिहार से लोग आते हैं, कोचिंग करते हैं, 3-3, 4-4 साल परेशान रहते हैं इस तैयारी में। क्यों? फंडामेंटल चीज क्लियर ही नहीं है, अवेयरनेस है ही नहीं, कोई चीज जाननी ही नहीं है। आईएएस का सारा पेपर, सारा न्यूज़पेपर से बनता है। मतलब आज के समय में जिसका न्यूज़पेपर पे कमांड, वो आईएएस। तो पहली बात तो ये करना है, अवेयरनेस पे कंसंट्रेट करना है, पेपर। और दूसरी बात, यहां आके कॉलेज में डिस्कस करना है, झगड़ा नहीं करना। डिबेट का मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। डिबेट का मतलब ये नहीं कि मैं सही हूं, आप अपना पॉइंट बोलो, सामने वाला अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द सोर्स, आपको बताना पड़ेगा दिस इज द सोर्स। फिर सामने वाला अपना पॉइंट बोलेगा, आप उससे पूछो व्हाट इज द सोर्स, वो बताएगा, नोट डाउन करो। और 6 महीने में देखना तुम्हारी कितनी अच्छी सिचुएशन हो जाती है। डिबेट करो। यहां इतने बढ़िया कॉलेज के एटमॉस्फेयर में रहते हो, ग्रुप बना लो छोटे छोटे। जिनकी तैयारी करना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट अवेयरनेस। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए क्या करें? अब हमारे देश में बड़ी एक्सट्रीमिटी है, एक्सट्रीमनेस, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। जैसे अगर तुम इस कंट्री में बीए करते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो तुमको बड़ी अजीब निगाहों से देखा जाएगा। तो शादी वादी में तुम गए और किसी ने पूछ लिया क्या करो, तुमने कहा बीए। बीए तो मतलब ऐसी निगाहों से देखे बीए मतलब। यहां वैल्यू किसकी है? इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल्स, आईएएम। कहते नौकरी करना है जीवन में। ठीक है, करना है, बिल्कुल नौकरी भी करनी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी कंट्री में ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ाते स्कूल में। मैंने 9th-10th में जब हिस्ट्री पढ़ते थे तो टीचर बोलती थी ओनली 10th ओनली, उसके बाद नहीं पढ़ना। और हिस्ट्री पढ़ के कोई किसी को नौकरी नहीं मिलती। तुम्हारे पिताजी कहते थे ये तो बात सही है, हिस्ट्री पढ़ के नौकरी नहीं मिलती, लेकिन हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं। हमने ह्यूमैनिटीज पढ़ी ही नहीं। 4-5 दिन पहले एक साहब मेरे घर आए, अपनी बेटी को लेकर, ग्रेजुएशन कर चुकी, बोली आई हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन दिस ईयर। मैंने कहा दिस ईयर यू क्वालिफाई दिस मंथ, यू राइट ए स्पेशल एप्लीकेशन टू धौलपुर हाउस। फिर सर हमको इसी महीने क्वालिफाई करना है, आप एक ही महीने में मेरा एग्जाम ले लो। मैंने कहा ऐसे नहीं बोला जाता, हमें इसी साल करना है। हाँ, तैयारी शुरू करने जा रहे हो जी? कौन से सब्जेक्ट थे ग्रेजुएशन में? सर ज्योग्राफी। तैयार है? जी जी बिल्कुल। मैंने कहा सऊदी अरेबिया में टाई की दुकान खोलोगी? बोली नहीं। मैंने कहा क्यों? बोली ऐसे ही। मैंने कहा तुम दिल्ली में रहती हो? बोली हाँ। मैंने कहा वो शाहजहां रोड की तरफ से मत जाना, शाहजहां रोड पे धौलपुर हाउस पड़ता है। मैंने कहा उधर से मत जाना। बोली क्यों? मैंने कहा वो निकल के बाल पकड़ के लड़ाएंगे दीवार में तुम्हारा। ठीक है, जवाब तो सही था कि भाई सऊदी अरेबिया में टाई की दुकान नहीं खोलेंगे। ड्रेस एंड फूड डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। दो चीजें कल्चर का हिस्सा है, ड्रेस एंड फूड। अब अगर तुमने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तो इकोनॉमी, इसलिए तुम ज्योग्राफी में देखो पार्ट्स है, फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी।
पॉपुलेशन डेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, सब ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी समझे बिना इकोनॉमी प्रमोट ही नहीं हो सकती। पता है अभी तुमने जवाब दिया, किसी ने इधर जवाब दिया, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ अफ्रीका में। आज मॉडर्न वर्ल्ड की आत्मा क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज अमेरिका सुपर पावर है, किसकी वजह से? एप्पल की वजह से। उस सुपर पावर को टक्कर कौन दे रहा है? वन प्लस किसका है? चाइना का। एप्पल, वन प्लस के पीछे कौन खड़ा है? लावा। और एक हमारे पड़ोसी मुल्क है, ना उनके पास एप्पल है, ना उनके पास वन प्लस है, ना उनके पास लावा। वो लावा बॉम्ब बनाते हैं। यानी आज पॉलिटिकल पावर जो है वो किस पे बेस्ड है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 किसकी देन है? ज्योग्राफी और इकोनॉमी की। इतना गहरा संबंध है आई और आई का। आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और आई मतलब इंडस्ट्री। 1853 फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई टू ठाणे। 1854 फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई। 1853 फर्स्ट रेलवे लाइन मुंबई। 1854 फर्स्ट कॉटन मिल मुंबई। देखो दोनों का रिलेशन। यानी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा वहां इंडस्ट्री। कनेक्ट करना है सब्जेक्ट्स को। अब हम लोगों ने ह्यूमैनिटीज पढ़ी नहीं, क्लास 10th के बाद 10th तक पढ़ी थी भगवान के भरोसे। हमारे सर थे, वो कहते थे रट लो रट लो रट लो। मैंने कहा सर नहीं रट पा रहे। बोले रट लो। अरे मैंने कहा सर नहीं हो रहा है। बोले हम बता देंगे। तो दूसरा काम ये करो, सारे जितने लोग IAS बनना चाहते हो, कुछ लोग नेता भी बन जाओ यार। मैं तो देखता हूं अजीब नशा इस देश में, जहां जाओ सबको IAS बनना है। तो चूंकि तुम सारे पढ़े लिखे लोग IAS बनने जा रहे हो, तो वहां संसद में जगह खाली हो जा रही, बाकी लोग वहां चले जा रहे हैं। तो तुम में से कुछ लोग ये भी प्लान बनाओ, पॉलिटिक्स में जाएंगे, टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। प्रोफेशंस अपनी शौक का होना चाहिए। तो फिर भी कुछ लोग तैयारी करना चाहते होंगे, बिल्कुल करिए, आप एकदम तैयारी करिए। और इस तैयारी का एक नियम है, 2 साल की होती है, मैं अभी उस पर चर्चा करूंगा। और 2 साल के बाद अपने सेकंड ग्राउंड को तुरंत तैयार करना है, मैं उस पर आ रहा हूं। लेकिन पहली बात अवेयरनेस, दूसरी बात फाउंडेशन। NCERT उठाइए ज्योग्राफी की, उस पर लिखिए कि ज्योग्राफी क्यों पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के बिना इकोनॉमी नहीं हो सकती। ज्योग्राफी से कौन कौन रिलेटेड है? इकोनॉमी रिलेटेड है। IR इंटरनेशनल रिलेशन। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि साउथ चाइना में हमारा भी इंटरेस्ट है, दिया ना। लेकिन अभी मैं आपसे पूछ लूं कि साउथ चाइना सी उसका क्या इंपॉर्टेंस है? आपने एक स्टेट हेड, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहा है कि वी ऑल्सो हैव अ इंटरेस्ट इन साउथ चाइना सी। चाइना क्लेम्स साउथ चाइना सी, चाइना कहता है मेरा है साउथ चाइना सी। कल इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमारे भी इंटरेस्ट हैं। हमारे भी इंटरेस्ट मतलब अल्टीमेटम टू चाइना। तो ज्योग्राफी से क्या रिलेटेड है? IR। ज्योग्राफी से क्या रिलेटेड है? इकोनॉमी। ज्योग्राफी से क्या रिलेटेड है? कल्चर। सिर्फ पढ़ना नहीं है। क्यों पढ़ना है? क्यों? अब तुम अगर केरला का ज्योग्राफी समझो तो वहां का कल्चर तुम्हें तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। केरला का हिंदू और कश्मीर का हिंदू, दोनों के ड्रेस में डिफरेंस होगा। केरला का मुसलमान और कश्मीर का मुसलमान, दोनों के ड्रेस में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि ड्रेस और फूड ज्योग्राफी पे डिपेंड करते हैं। तो दूसरा काम तुम सारे लोग ये करो, अब फाउंडेशन 6 to 10th NCERT उठाओ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, 4।
और उसको अगले 5 से 6 7 महीने जो भी तुम्हें लगे उसको पूरा करो। कुछ नहीं, बिना फाउंडेशन के अगर आप कहीं पहुंच गए दिल्ली, बिना फाउंडेशन के दिल्ली बिल्कुल मत जाइए। और हम तो कहेंगे दिल्ली जाइए, जाना ही क्यों जब इकरा IAS कानपुर में मौजूद है और सारे लोग दिल्ली से ही आ रहे हैं। पहला इंस्टीट्यूट है जिसके सारे टीचर्स दिल्ली से ही आते हैं और ये अपना NCERT का बैच भी चलाते हैं। अब यहां बड़े सारे लोग ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, कितने लोग कर रहे हैं? पॉल साइंस किसका सब्जेक्ट है? चलो फंडामेंटल राइट बताओ, बताओ। तुम्ही ने कहा था ऐसे मेरा है तो नहीं, तुम मत बताओ, पहले ये बताइए। अरे ले लो भाई, कोशिश तो करो। अटल जी कहते थे ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो अच्छा बताओ। Sir, there are 6 fundamental rights in India. The first is 6 फंडामेंटल राइट्स। कितनी? 6. 6। अब फंडामेंटल राइट किसको दी जाएगी? सिटीजन्स को। हम सब कौन है? 1950 से पहले नेशन नहीं था। नेशन रियल रूप में कब बना? विद द बर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 1947 से पहले यहां प्रीस्ट थे, नोबल्स थे, कॉमन लोग थे। 1947 प्रोविजनल गवर्नमेंट, 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी ऑल बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जब हम सिटीजन हो गए तो हमारी कुछ राइट्स होंगी ना। पहली राइट, right to equality. राइट टू इक्वालिटी। किसी को पता ही नहीं होगा इधर? कोई है? बताओ कितनी हिम्मत वाली। इसी लड़कियां टॉप कर रही हैं। यही वजह है, इतने सारे लड़के बैठे हैं, एक लड़की खड़े होकर चिल्ला रही है और इधर इतने सारे लड़के, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। कोई एक दूसरे देख रहा कि भाई तू बता दे। और मोबाइल लियो, ये नहीं कि उसी में गूगल खोल के धीरे से कहते बगल वाले तू बताता रहा, मैं बता रहा हूं। इस मोबाइल का क्या फायदा तुम्हारे पास? ये जो मोबाइल लिए हो, तुम्हें तो लगना चाहिए कि यार मैं इतना बेइज्जती कर रहा हूं, तू बता, धीरे से बता, बगल से मैं बताता हूं। हम तुम्हारे बीच बैठा होते भी यही करते, हम फैजल भाई को दे देते कि धीरे धीरे बता राइट टू इक्वालिटी क्या है। अब की बार IAS के रिजल्ट में पहला 4 स्थान लड़कियों का है। यही रीजन है। 14 क्या कहता है? Sir, equality before the equal protection. आराम से। इसको लड़की को NCERT हमारी तरफ से फ्री दे दो यार। तुम्हारी NCERT कोर्स फ्री। Thank you, sir. सर नाम वगैरह लिख लो, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। Thank you, sir. जब भीड़ में खड़े होकर चिल्लाओ तो जो मजा आता है ना जीवन में, बैठे हुए जैसे लग रहा है अभी इनसे नारा लगाने कह दो तो नारा लगाएं। Sir, actually I follow one rule in my life कि लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करो, कभी भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या बात है, कैच कर लिया अपॉर्चुनिटी। सर, जो अपॉर्चुनिटी आएगी हमारा वेट नहीं करेगी कि हाँ रुको, मैं थोड़ा वेट करो। आ रहा है आपके पास अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको ग्रैब करो, तुरंत ग्रैब करो। पकड़ के बैठा लो, ध्यान नहीं देंगे हम, क्या हो जाए। अपॉर्चुनिटी मिली नहीं कि कूद को पकड़ लिए। बहुत अच्छा, बहुत एक बढ़िया। चीज और, लाइफ में कोई भी काम करो उसको 100% करो। अगर तुम 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, अपना 100% दो कि लाइफ में बाद में रिग्रेट ना रह जाए कि काश हमने और पढ़ लिया होता, काश हमने ये ना किया होता। अगली बार से मैं जहाँ जाऊंगा तुमको लेके चलूंगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर तुम बीच में आ जाया करना। मैं तुमसे बोलूंगा कि भाई तू भी कुछ बोल जल्दी जल्दी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें कह रही है। अब तुम में से किसी कोई सवाल ये नहीं उठाएगा। तुम दूसरी गलती सबसे बड़ी करते हो, तुम सवाल नहीं करते हो, क्वेश्चंस नहीं करते हो। और कोई जरूरी नहीं कि तुम क्लास में ही करो। हर टीचर के पास एक फिक्स समय होता है क्लास में पढ़ाने का।
ठीक है, अगर वो आपके सारे सवालों का जवाब क्लास में नहीं दे सकता है, आप उससे क्लास से बाहर मिले। अब आप ये नहीं पूछेंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ क्यों? क्यों इक्वालिटी बिफोर लॉ? क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई? मनुस्मृति इज अ बुक ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म में देयर वाज नो इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन अब हम सब कौन है? सिटीजन हैं। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कोई भी हो, प्रीस्ट हो, नोबल हो, आम आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, कानून के दायरे में सब खड़े हैं। लॉ। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 आर्टिकल, नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब देखो अफगानिस्तान फ्यूडल सोसाइटी है, वहां कौन डोमिनेंट है? तालिबान और प्रीस्टली क्लास। लेकिन अमेरिका, वहां कोई डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं है। तो दूसरा आर्टिकल 15 कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के क्षेत्र में सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी। 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कोई नीचे फोन लेके बता तो नहीं रहा है? अब ये सवाल अगर तुम मुझे इसका आंसर बता दो तो तुमको भी गिफ्ट दिया जाएगा। अनटचेबिलिटी को क्यों टारगेट किया? एक मिनट, अनटचेबिलिटी को क्यों टारगेट किया? क्यों अबॉलिश किया उसको? तो सबसे पहली बात तो हम जब पहले इक्वालिटी की बात करेंगे तो अनटचेबिलिटी जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले हमको टारगेट इसीलिए करना पड़ेगा जिससे हम अपने आर्टिकल नंबर 14 को 15 को फुलफिल कर सकें। और कोई बात? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Firstly, untouchability has been practiced in India since ancient times. नहीं बेटा, एंशिएंट टाइम पहले से है, एंशिएंट टाइम से नहीं। हाँ, Abolition of untouchability under Article 17. हाँ। There is a law called Protection of Civil Rights Act 1995, which provides for untouchability and it should be completely prohibited. नहीं तो क्यों टारगेट किया अनटचेबिलिटी को? So because it discriminates on the people, because on the basis of their religion, race, caste, sex or gender. Actually, untouchable is a person who is without rights. कोई राइट ही नहीं होता उसको, It infringes their rights, sir. है ना? प्रियम्बल क्या कहता है? We the people of India. And untouchability was a punishment in pre-modern India. अब क्या हो गया? We have a IPC, CRPC. अब रिलीजन पनिशमेंट नहीं देगा, तो द रेलेवेंसी ऑफ रिलीजियस पनिशमेंट इज ओवर। अनटचेबिलिटी, उसका महत्व ही खत्म हो गया, अबॉलिश कर दिया। 18, Abolition of titles. अब मैं एंटर किया, अब कोई आदमी चिल्लाता महाराजा धीराज गोंडा नरेश जिले इलाही अवध ओझा पधार रहे, ऐसा कोई नहीं होगा। तो पहला आर्टिकल है, पहला है पार्ट है राइट टू इक्वालिटी। 6 बताया था तुमने, 6। दूसरा क्या है राइट टू इक्वालिटी के बाद? फोन देखो नीचे, बताओ तुम काम मेरा मुंह दे, उसको बताओ ना, चाहे हेल्प करो। पहला है इक्वालिटी, दूसरा है लिबर्टी, तीसरा है रिलीजन, चौथा है एक्सप्लॉइटेशन, पांचवा है कल्चर एंड एजुकेशन, और इन सबका गारंटी देना का बैठो, ये सबको पता होनी चाहिए, ये सबको। फाउंडेशन हम सबका, मैं भी जब तैयारी करने आया था, ये सबसे पहली चीज मुझे पता चली कि हम लोग का फाउंडेशन वीक है, और जिस बिल्डिंग में फाउंडेशन नहीं होगा उस पर बिल्डिंग कभी नहीं बनेगी। तो पहली बात अवेयरनेस पैदा करो, और दूसरी बात अपनी फाउंडेशन को मजबूत करो। कहां से? NCERT। 2 बातें क्लियर हो गई? 2 बातें क्लियर? पहला अवेयरनेस, दूसरा इसको, ये जो तुम मोबाइल 24 घंटे हाथ में रखते हो ना, ये तुम्हारी सोचने की क्षमता को खत्म किए दे रहा है। तुमको अंदाजा नहीं है तुमको कितना नुकसान कर रहा है
ये तुम्हारे पूरी सोचने की क्षमता को मार दे रहा है। तुम्हारी जो मनन की क्षमता, मनन, उसको खत्म कर देगा ये। तुम देखो लोगों में कितना एग्रेशन बढ़ गया। कोई माँ बाप को मार दे रहा है, कोई टीचर को मार दे रहा है, कोई घर में भाई को मार दे रहा है। मतलब तुम देखो लोगों में एग्रेशन कितना बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह क्या है? सोचने की क्षमता खत्म हो रही है। पर दिमाग इतना प्यारा गिफ्ट है भगवान का। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल, दुनिया में सबसे समझदार कौन लोग हैं? बोला सर मारवाड़ी है सर। बोला मारवाड़ी? बोले हाँ सर बहुत समझदार है। बोले बीरबल साबित करना पड़ेगा। बोले सर साबित करेंगे। और बोले ये मौलाना साहब जो हमारे यहाँ बैठे। अकबर ने कहा सोच लो तुम मौलाना का मजाक उड़ा रहे हो, फांसी चढ़ाएंगे तुमको। हाँ बोले सरकार मंजूर है। तो बीरबल ने अकबर की तरफ से मौलाना साहब को पैगाम भेजा, मैसेज, कि शहंशाह सलामत आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। मौलाना साहब ने कहा कायम मजाक करो भैया, हमारी दाढ़ी खरीद के क्या? बोले खरीदना चाहते हैं बस, और बेचना पड़ेगा, शहंशाह का हुक्म है। कितना पैसा लोगे? मौलाना का दाढ़ी का क्या पैसा? हाँ बोले तब भी कुछ ले लो। बोले 5 रुपया दे दो। मौलाना ने दाढ़ी 5 रुपये में बेच दी। एक हफ्ते बाद शाही नाई पहुंचा मौलाना के घर पे। बोला ये दाढ़ी शेव करनी। अरे मेरी? बोले तुम्हारी कहाँ है? शहंशाह खरीद चुके हैं, तो शहंशाह की। मौलाना साहब दरबार आना बंद कर दिए। बीरबल ने अकबर से कहा कि देखा जहां बना सब पढ़ाई लिखाई बेकार। एक मारवाड़ी को बुलाया गया दरबार में। बोले भैया? उसने कहा हाँ। बोले शहंशाह आपकी दाढ़ी खरीदना चाहते हैं। थोड़ा सबका हिला अंदर से। उसने कहा मेरी? बोले हाँ। बोले ये शहंशाह? अरे बोले हाँ यार शहंशाह अकबर तुम्हारी दाढ़ी खरीदेंगे। कितने की है? उसने कहा 10 लाख सोने के सिक्कों की। अकबर खड़े हो गए कि तुम्हारा दिमाग खराब है, ये 10 लाख सोने के सिक्कों की दाढ़ी है? बोले सर जहां बना बहुत कीमती दाढ़ी है। जब से पैदा हुई ये दाढ़ी और मूंछ, तब से समाज ने इसका ताना दे देकर इतना काम कराया है। कह रहे शादी कर लो, मूंछ नीची हुई जा रही है। बोले साहब शादी कर लिए। बोले बच्चे नहीं पैदा हो रहे? बोले बच्चे पैदा कर लिए, परिवार कर लिया, समाज कर लिया। इस दाढ़ी मूंछ पे करोड़ों रुपया खर्चा हो चुका जहां पर। मैं तो डिस्काउंट में आपसे 10 लाख सोने के सिक्के मांग रहा हूं। अकबर ने कहा दे दो भाई 10 लाख सोने का सिक्का। चला गया मारवाड़ी। एक हफ्ते बाद शाही नाई पहुंचा उसके घर। कहा वो दाढ़ी बनानी है। एक चाटा मारा नाई को। नाई ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, शहंशाह ने भेजा है। हाँ ये बोला ये दाढ़ी भी उसी शहंशाह की है। तुम्हारी हिम्मत, तुम शहंशाह की दाढ़ी पे हाथ लगाओगे? मारवाड़ी को पकड़ के दरबार में लाया गया कि तुम शहंशाह का आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। उसने कहा नहीं माई बाप, ये दाढ़ी आपकी है, आप इसके मालिक हैं माई बाप। ये आपकी दाढ़ी काटने जा रहा है। कितनी साम्राज्य और शहंशाह की बेइज्जती। उन्होंने कहा बेइज्जती तो है। अकबर ने नाई जगह के नहीं। तो फिर उस मारवाड़ी ने कहा कि शहंशाह अब ये आपकी दाढ़ी है, इसमें डव का शैम्पू लगाना पड़ता है। डव। और शहंशाह ऑलिव ऑयल लगाना पड़ता है। इस पे हर महीने 100 सोने के सिक्के और खर्चा होता है। पहले तो मैं ऐसे ही मिट्टी उट्टी लगा लेता था, आपकी दाढ़ी है। अकबर ने कहा इसको हर महीने 100 सोने के सिक्के दिए जाए। बीरबल ने कहा देखा, ये है दिमाग तुम्हारे पास, तुम मानते ही नहीं। इतना बड़ा भगवान ने गिफ्ट दे दिया कि जिसने भी इस्तेमाल करना सीखा
डॉक्टर बी आर अंबेडकर, मैं जहां जाता हूं उस आदमी को कोट करता हूं। डॉक्टर बी आर अंबेडकर किस फैमिली से हैं? अनटचेबल है ना, लेकिन कहां बैठ रहे हैं बाद में? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसकी वजह से? शिक्षा। उन्होंने लाइब्रेरी खोली मुंबई में, उनके अपने पास 50,000 किताबें थी, 50,000। वो भी कब? जब 1916 में वो लंदन से वापस आ रहे थे तो उन्होंने एक जहाज में अपनी बहुत सारी किताबें लदवा दी थी कि मैं इंडिया में लूंगा। उसको जर्मन ने डुबो दिया। 1916 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1931 पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जॉर्ज V ब्रिटेन का राजा सामने बैठा हुआ, रैमसे मैकडॉनल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और अंबेडकर की उम्र कितनी? 39 ईयर्स। खड़ा हुआ लगे बोलने। ये तब उस आदमी ने एक स्टेटमेंट दिया जो इतना फेमस हुआ, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइगर्स। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा। अवेयरनेस को बढ़ाओ। तुम सोचते हो एक दिन कोचिंग कर लेंगे फिर IAS बन जाएंगे। इस क्लास में तो हर आदमी को फंडामेंटल राइट जानना चाहिए था, हर आदमी को। तुम्हारी राइट है, आर्टिकल 19 तो जानना ही चाहिए। आर्टिकल 19 और 21 अगर तुम नहीं जानते इस देश में, रात में 1 बजे TTE तुमको ट्रेन से उतार रहा है किसी लोनली स्टेशन पे, नहीं उतार सकता वो। आर्टिकल 21 रिलेटेड टू लाइफ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम बहुत सही जगह पे हो, बहुत सही समय है, कुछ भी नहीं बिगड़ा। इस क्लास में मैक्सिमम उम्र जिसकी होगी वो 22 साल होगी मैक्सिमम, बाकी सबकी कम ही होगी। कुछ भी नहीं बिगड़ा। अवेयरनेस और फाउंडेशन यहां से शुरू करो। न्यूज़पेपर लो, दैनिक भास्कर अच्छा न्यूज़पेपर है हिंदी में, कोई जरूरी नहीं है। और एक और भी चीज हमारी कंट्री में, एक आदमी जो काम करेगा सब करेंगे। कहते डर के आगे जीत है, डर के आगे डिप्रेशन है, जीत है कॉन्फिडेंस के आगे, उत्साह के आगे। डर के आगे कहां जीत है? जाओ कभी कब्रिस्तान में 2 बजे रात में चेक करो, डर के आगे जीत है कि नहीं। तुम एक्सपेरिमेंट तो लाइफ में करते नहीं। हमसे एक साहब स्प्राइट पी रहे थे, बोले डर के आगे जीत है। हमने कहा चलो आज रात में 2 बजे बैठाएं तुमको कब्रिस्तान में, दिखाओ जरा डर के आगे जीत है। न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं कि यहां सब सबसे पूछते हैं, हर चीज सबसे नहीं पूछनी है। अर्जुन की जीत इसीलिए हो रही है क्योंकि वो आदमी सिर्फ एक आदमी से राय ले रहा है। और दुर्योधन, आजकल तो YouTube पे इतने सारे लोग बता रहे हैं, नीम का पत्ता ले लो, सरसों का पत्ता ले लो, उसमें दही मिला लो, फिर सर पे लगा लो। एक भाई साहब लगा लिए, बाल ही सब गायब हो गए। जब भी तुम्हें कोई बात हो, अगर मेडिकल से संबंधित है, बिना डॉक्टर से राय लिए कुछ भी मत करना, जान चली जाएगी, जान लेना। बिना डॉक्टर से राय लिए कुछ भी मत करना। उल्टी सीधी, इस कंट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम पता है? फेयर एंड हैंडसम। फेयर एंड लवली नहीं, फेयर एंड हैंडसम, मर्दों वाली क्रीम। मैंने जब उसका डाटा देखा कि दुनिया भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली क्रीम फेयर एंड हैंडसम, लड़के ले आ रहे, मैंने कहा चलो ठीक है, लड़कियों की पॉपुलेशन थोड़ा कम है, आज क्रीम लगा रहे हैं, कल फिर लिपस्टिक लगाएंगे, नेल पॉलिश लगाएंगे। अब बाहर की कंपनियां कुछ भी ऐड करती इस कंट्री में, कुछ भी। वो एक डीओ है उनका एक्स, उसका ऐड कर दी। एक लड़का कॉलेज आया, पहले दिन उससे कोई लड़की बात नहीं कर रही, दूसरे दिन वो डीओ लगा के आ रहा है, परियां गिर रही है आसमान से।
वैसे ही लड़कियां बात करेंगी, इतनी कोई बड़ा इशू नहीं, पर नहीं कर रही है, बुलेट ढाला हाथ में। अभी एक साहब ने फोन किया इनको, डिप्रेशन, मैंने क्या हुआ? और उन्होंने तो किया, उनके गार्जियन उनके साथ थे। वो मेरे लड़के का 9 ईयर से रिलेशन था, लड़की चली गई। मैंने कहा मैगी खाते हो? कहा हाँ। मैंने कहा फिर जाएगी। जाने दो भैया, हर आदमी की इंडिपेंडेंस है, जबरदस्ती है भाई, हमारा तुमसे मन नहीं बात करने का, जबरदस्ती है। तुम जबरदस्ती लेके बैठा हो कि जबरदस्ती है, इमोशन है, आंसू गिर रहा है, जूता दिला के इतना ज्यादा तुमको। सब देखो, मोदी से सब रिश्ता बनाना चाहते हैं, सब मिलना चाहते हैं। तुम इसको देख के समझते नहीं कि पावर मेन चीज है, अचीवमेंट मेन चीज है। तुम उसमें ध्यान ही नहीं देते। सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत कोई नहीं करता। चंद्रमा पे कोई कह रहा प्रेमिका है, कोई कह रहा भिखारी है, कोई कह रहा मामा है, सबने रिश्तेदारी कर ली चंद्रमा से। रात भर बैठ के चंद्रमा देख रहे हैं। किसी से कह दो 1 घंटा बैठ के जरा सूरज को देख ले। तुमको ये सब चीजें देखकर एहसास नहीं होता। कबीरदास जी स्कूल कभी नहीं गए, देखने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। खजूर का पेड़ देखा, दोहा बना दिया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया अति दूर। चक्की देखा, दोहा बना दिया। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। द्वंद्व में फंसे हो, सबसे राय ले रहे हो, सबसे पूछ रहे हो, और यहां एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता क्रॉस करा रहा है। तीसरा काम ये करो कि एक शेड्यूल बनाओ 2 साल का। इस तैयारी में 2 साल लगते हैं, और जो 2 साल कायदे से नहीं लगाते उनको फिर 10 साल लगते हैं। इस तैयारी में 2 साल लगते हैं। 2 साल लगना ही लगना है, वो निश्चित है। उसकी पहली वजह मैं बताऊं, हम सब जब तैयारी करने जाते हैं, पूरा आईएएस का एग्जामिनेशन किस पे बेस्ड है? ह्यूमैनिटीज पे। क्या पढ़ना है? ज्योग्राफी। क्या पढ़ना है? आईआर, इकोनॉमी, पॉलिटी, यही सब पढ़ना है। और वो हमने कभी कायदे से पढ़ा नहीं। हिस्ट्री। तो 5 महीने का शेड्यूल बना के फाउंडेशन मजबूत कर लो। फिर तुम अपनी चॉइस से कोचिंग ज्वाइन कर लो। कोचिंग ज्वाइन करना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि जो काम तुम 15 महीने में करोगे, कोचिंग तुमको करा देगी 7-8 महीने में। उसके एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो बता देंगे ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो तुम्हारा 1 साल पूरा कोचिंग हो गया। जो दूसरा साल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको सुन लो। उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो दूसरे साल का कायदे से, अब तुमने कोचिंग कर ली, फाउंडेशन तैयार कर लिया, ज्योग्राफी पता, हिस्ट्री पता, इकोनॉमी पता, सब पता। अब तुम कोशिश करो कि 1 साल में कम से कम 1000 मेंस के क्वेश्चन लिख डालो। तुम बिना सोचे पढ़ सकते हो, तुम बिना सोचे लिख नहीं सकते। और जैसे ही तुम 1000 क्वेश्चन लिखोगे, पूरा सिलेबस तुम्हारा यहां सेव हो जाएगा। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, दर्द होगा ही। साइकिल जब सीखे पहली बार तो कभी गिरे, घुटने में चोट लग गई, कभी लगे यहां चोट लग गई, और मार खाए घर में अलग से। 1000 मेंस के क्वेश्चन और कम से कम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन 1 साल में। और फिर जब कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा एकदम पैदा हो जाए कि हाँ, फिर जाके तुम एग्जाम दो। एग्जाम दिया, हो गया, बहुत अच्छा। नहीं हुआ और तुम्हारी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो 1 अटेम्प्ट और ट्राई कर लो, फिर तो हो ही जाएगा। बाई चांस तुम बच गए तो तुम्हारी उम्र 23 साल 24 साल के आसपास होगी। सेकंड ऑप्शन तुरंत पकड़ लो, लॉ कर लो, जर्नलिज्म कर लो, एमबीए कर लो, क्योंकि इतना करने के बाद, 2 अटेम्प्ट इंटरव्यू देने के बाद सिर्फ तुम्हें रिवीजन करना होगा, और रिवीजन 3 घंटे से ज्यादा नहीं होता। एक ट्रेन में एक पहलवान डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था,
तो नींबू लिया, उसने नींबू को काटा और फिर दोनों तरफ से नींबू को नीचे उड़ दिया। और फिर उसने ट्रेन में जितने लोग बैठे थे उनसे कहा कि जो इन नींबुओं में से 2-3 बूंद और निकाल देगा उसको मैं 10,000 रुपया दूंगा। एक बड़ा दुबला पतला सा आदमी उठा, बोला भैया मैं निकालूंगा। आया, उसने पहलवान जी से नींबू लिया, 10-12 बूंद निकाल दी। पहलवान जी तो सन्नाटे में आ गए। क्या तुम भी पहलवानी करते हो? उसने कहा नहीं साहब मैं तो चना बेचता हूं। कानपुर से औरैया की जो बस चलती है मैं चना बेचता हूं, दिन में मेरा काम ही है नींबू निचोड़ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त चीज है, इतनी। 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के और 1,000 क्वेश्चन मेंस का। चौथा लास्ट पॉइंट, जब हम संघर्ष शुरू करते हैं हम सब, तो हमें 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है, एक तो शक्ति की और एक उत्साह की। लेकिन अगर तुम भिखमंगों से भीख मांगो, भिखारियों को देखा है सबसे ज्यादा उस एरिया में खड़े होते हैं जहां से गाड़ियां बहुत ज्यादा गुजरती हैं, या जो प्रॉस्पेरिटी का एरिया वहां। कभी तुम दिल्ली आओ तो सबसे ज्यादा भिखारी जो रेड लाइट होगी वो करोल बाग होगी, वो कैनॉट प्लेस होगी, क्योंकि वहां सारे एफ्लुएंट लोग ही आते हैं। तुम मंगोलपुरी चले आओ, वहां की रेड लाइट पे कोई नहीं, क्योंकि लेने के बजाय देने के बजाय पता लगा भिखारी की जेब में से ही निकाल ली। बहुत, ये पॉइंट सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। अब तुम क्या करते हो जब राइज करना, मतलब संघर्ष करने की शुरुआत करते हो, तुम्हें उत्साह की जरूरत है और शक्ति चाहिए, और तुम बाहर जाते हो मांगने, और तुमने किसी से कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं, हाँ बोले कर लो। तिवारी जी की बिटिया दे रही थी, 2 बार दी, पागल हो गई। उसके बाद वो सीधे तुमसे नहीं कहेगा कि मत करो, सीधे कहेगा ही नहीं। तुम कभी ट्राई करके देखो, कोई तुम्हारे साथ मार्केटिंग करने गया, कपड़ा ले रहा है, धीरे से कुछ बोल दो उसके बारे में उल्टा सीधा कि लेवाइस की पैंट श्रिंक बहुत जल्दी होती है। अच्छा, 98% लोग इस दुनिया में सेल्फ डिसीजन लेने की क्षमता नहीं रखते। बस उनको धीरे से कोई बात बोल दो कि ज्योग्राफी में नंबर नहीं आते हैं। कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं पैलियोलिथिक एज से, और तब से सब्जेक्ट ही चेंज कर रहे हैं। बहुत लोगों से मेरी दिल्ली में मुलाकात होती है, हर 6 महीने पे सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? सर उसमें नंबर नहीं आते। तो मेंस लिखे हो? नहीं सर। तो तुमको कैसे पता नंबर नहीं आ रहे? 2 चीजों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, एक उत्साह और एक शक्ति, जो तुम्हें बाहर बहुत रेयर में मिलेगी, बहुत रेयर। तो क्या करें? अगर तुम उसको अपने अंदर ही जनरेट कर लो, साधना करो। हर धर्म ने रास्ता बताया है, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सिखिज्म हो, सब ने रास्ता बताया, सब ने। तुम अपने धर्म वाला निकालो। जितने लोग योग वगैरह में विश्वास रखते हैं, तुम सिर्फ अगर सूर्य नमस्कार करो 6 बार पर डे, 6 में तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। 1 से शुरू करो, 1 से। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो शक्ति की देन है। जंगल में देखो गैंडा कैसे घूमता है मस्ती से, ताकत है ना शरीर में। सामने कोई पड़ गया, फाड़ दिया। ये जो तुम कॉन्फिडेंस बाहर ढूंढ रहे हो, ये नहीं मिलेगा, है ही नहीं। मैं कभी कभी मोदी जी के बारे में सोचता हूं तो मैं सोचता हूं कितना संघर्ष किया होगा इन्होंने, कितनी आंतरिक क्षमता विकसित की होगी, कितना लोगों ने डराया होगा। कल इतिहास उनके बारे में क्या कहता है वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने सामान्य परिवार से आके 2 टर्म प्रधानमंत्री, वो भी उस कंट्री में जहां फ्यूडल कंट्री। कितनी अंदर ताकत होगी। जैसे हमको तुमको लोग डिमोरलाइज करते हैं,
मैं तो तैयारी करने आया तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि अरे अब ढोलपुर हाउस बंद हो जाएगा। जितनी मानसिक ताकत तुम्हारे पास होगी, मानसिक, मैंने अपने घर में 3 फोटोग्राफ रखी है, तो कई सारी, 3 पर मेन फोकस रहता है मेरा। एक स्टीफन हॉकिंस की, शरीर खराब है, दिमाग सही है, नोबेल प्राइज विनर, 17 प्राइजेस उस आदमी के पास इंटरनेशनल। दूसरी दुर्योधन की, शरीर सही है, दिमाग खराब है। हमारे साथ एक साहब पहले गाड़ी चलाते थे, गुटखा बहुत खाते थे, तो हमने कहा ये जब खाते हो तो पीछे कंटेंट नहीं देखते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। नहीं ऐसे इसको खाने से उत्तेजना बनी रहती, और भैया इसको खाने से दिमाग भी बढ़ता है। मैंने कहा तुझे तो यूपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, कितने साल से खा रहा है? अरे ऐसा थोड़ी है भैया। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, वहां पे लोग ज्यादातर खैनी खाते, क्या तुम भी खाओ? मैंने कहा इससे क्या होता है? बोले बुद्धि बढ़ती है, बुद्धिवर्धक चूरन। तुम योग करो और ध्यान करो। और एक फोटो मैंने लगा रखी डॉक्टर अंबेडकर की, कि क्या क्षमता रही होगी। तुम्हारी एक दिन कोई बेइज्जती करते, तुम दूसरे दिन कॉलेज नहीं आओगे, या तुम टीचर से बदला लेने की सोचोगे। उस आदमी को संभोली के स्कूल में डेली उनको बोरा लेकर आना होता था, डेली, और क्लास में जाने के बाद अपना बोरा उठा के ले जाना होता था, क्योंकि स्कूल का नौकर उस बोरे को टच नहीं करेगा, अछूत का बोरा है, डेली। क्या मानसिक स्थिति रही होगी उस आदमी की कि मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। एल्फिंस्टोन कॉलेज मुंबई, बोले संस्कृत नहीं पढ़ने देंगे, अछूत हो तुम। बोले ठीक, पर्शियन पढ़ेंगे। हाईएस्ट नंबर पर्शियन, आज तक उनके रिकॉर्ड को कोई तोड़ ही नहीं पाया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डीएससी, पीएचडी के बाद, पीएचडी में इतने नंबर, इतने कि यूनिवर्सिटी ने खुद ऑफर किया डीएससी, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, कि साहब हमारे यहाँ से और एक डिग्री ले लो। हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े घराने के लोग अपने बेटे को ग्रे इन में नहीं पढ़ा पाए। लंदन का कॉलेज है लॉ का, वहां से पढ़े, लौट कर आए, फिर वही नाटक। अमेरिका गए, कोलंबिया, तो वहां क्या हो गए? सिटीजन हो गए अमेरिका के। तो सिटीजन के पास तो राइट होती है, जैसे आज तुम सिटीजन हो, लेकिन जब वो वहां से वापस आए इंडिया, तो इंडिया नेशन नहीं था, फिर अछूत हो गए। इतना पढ़ के आए, फिर अछूत हो गए। ऑफिस में अगर चपरासी नहीं है तो वो पानी खुद से नहीं ले सकते थे, उनके लिए कहावत थी, नो बियॉन्ड नो वाटर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड अटेंड करने का, इतनी तबीयत खराब, इतनी उल्टी, पता नहीं क्या। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकते। अरे यार कैसी बातें करते। 3 बेटे बच्चे मर गए, सबसे छोटा वाला मरा, वो तो टूट ही गए एकदम से। इस दुनिया में तुम जो भी करोगे, पढ़ोगे, प्रेम करोगे, युद्ध करोगे, पूजा करोगे, सब जगह तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा, सब जगह। और अगर वही कमजोर है, आज तुम अपनी डायरी में लिखना है ना, तुम्हारे साथ तुम्हारा मन 24 घंटे रहता है, सोते वक्त सपना चलता रहता है। आईएएस हो गए, मंत्री जी की बेटी शादी हो गई, गांव वाले सब सड़क पे लेटे हुए हैं। तुम क्या सोचते हो? सोते वक्त तुम्हारा दिमाग शांत होता है, फिर दूसरे दिन सपना दिखाएगा कि नहीं बन पाए, मार के भगा दिए गए, मुंबई भीख मांग रहे हैं।
तो मुझे आदमी का सोने का पोस्टर दिखा दो, मैं बता दूंगा कौन सा सपना चल रहा है। अगर खूब फैला लेटा हुआ तो समझ लो IAS बनने वाला सपना देख रहा है, और अगर एकदम दब के लेटा हुआ है तो दूसरा फेस चल रहा है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पीछा कहीं नहीं छोड़ता, और जो तुम्हारा दिमाग पीछा कहीं नहीं छोड़ता वही कमजोर है। तुमसे किसी ने कह दिया तुम्हारा IAS में नहीं होगा, ठीक, मेरा IPS में होगा। छोटी छोटी बातों को तुम लोगों को माइंड करते हो। हमको इतना ट्रोल करते हैं, इतना, हफ्ते में 18 बार करते हैं, 7 ही दिन होते हैं, खूब ट्रोल करते हैं, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। पहले तो एक आध बात धमकी भी दी, गाली भी दी, उनको लगा टीचर है। टीचर नहीं है तो शौक में पढ़ा देते, कोई नहीं पढ़ा रहा तो पढ़ा देते। फोन मिला के धमकी दोगे तो अपनी मन की, और तुम 22 साल के युवा गुटखा खा रहे हो। मतलब मेरा मन होता है तुम्हारे कॉलेज में अगर कहीं कोई थूका हो तो पकड़ के लटका दो पेड़ में तुरंत। ये कॉलेज कैंपस कितना साफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तुम 22 साल के युवा, 20 साल, सर डिप्रेशन हो गया क्या? तो 35 साल में तो तुम्हारा पता नहीं क्या हो जाएगा। साधना करो, साधना, अपनी शरीर की ताकत बढ़ाओ और अपने मन की ताकत बढ़ाओ। 1 घंटा अपने आप को दो, ध्यान करना, योग करना। सबको करना पड़ता है, सबको। कोई लड़ाई है ना, ये जीवन लड़ाई है, लड़ाई में शक्ति चाहिए, बाहर वाला नहीं देगा। रेयरिटी ऑफ रेयर। तुम जब भी कोई बड़ा काम करने जाओगे, और लड़कियों की तो और हालत खराब करते लोग। लड़की का पिता भले लड़की से कुछ ना कहे, पड़ोसी रिश्तेदार, तुम्हारे पापा का BP हाई रहता, देखो शादी के लिए कहेंगे मना मत करना। और लड़कियों को अगर चाहिए कि मेरा पिता मुझसे निश्चिंत रहे, तो पढ़ाई में वो इतना अव्वल दर्जा बना ले। कोई पिता नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को भगा दूं अपने घर से, कोई, बशर्ते उसको बाहर जवाब देने को कुछ हो। पत्थर लोग फेंकते हैं, हीरा कौन फेंकता है? और तुम लोग अगर पढ़ने में हर जगह टॉप करती जा रहे हो, नंबर लेके आ रहे हो, डिबेट कर रहे हो, एग्जामिनेशन दे रही हो, और तुम्हारे पिता ही से किसी ने कहते हैं बेटी एक शादी कर दो, ले आके अंदर 20-25 जूता मारेगा अंदर बैठा के। तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पिता की जो, क्योंकि मिडिल क्लास जो फैमिलीज होती है, मिडिल क्लास, उनके पास बेचारा इतना दबाव होता है, समाज इतना दबाव क्रिएट करता है, इतना। 4 बातें। पहला, अवेयरनेस। अगली बार जब हम यहाँ एक कंपटीशन करेंगे करंट अफेयर्स में, इस बार तो सेशन हो गया, अगली बार करंट अफेयर्स पे कंपटीशन करेंगे, सब लोग आना, पार्टिसिपेट करना, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे, सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट देके भेजेंगे। और ये दोनों, ये लड़की जो है उस लड़के, तीनों आदमी का नाम लिख लो, इन तीनों आदमी को NCERT दे दो फ्री में। और अपने मैनेजमेंट को, अपने क्लास को, अपने प्रिंसिपल को कम से कम अगर एक फूल नहीं दे सकते हो तो थैंक यू जरूर बोलो, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में सब लोग ट्राई करते हैं, नहीं देते परमिशन, वो नहीं देते, कोई ना कोई इशू बना देते हैं, मैनेजमेंट वाज नॉट एग्रीइंग, ये वो पानी गिर रहा है थोड़ा सा। पर तुम्हारे स्कूल मैनेजमेंट ने परमिशन दी, कितनी बड़ा काम किया इन लोगों ने। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपने लोगों की तारीफ नहीं करते, हम दूसरों की करते हैं। हमारी वाइफ तैयार हो रही है, उससे हम झगड़ा करते हैं, 4 घंटे से तैयार हो रही हो, और शादी में गए दूसरे की वाइफों की तारीफ कर रहे हैं।
कि भाभी जी लग रहा आसमान गिर जाएगा। तब वो पत्नी को लगता है कि तू चल घर आ गए। सबसे पहले अपने घर के आदमी की तारीफ करनी है, अपने बच्चे की करनी है, अपने पति की करनी, पत्नी करनी, माँ बाप की। अपने माँ बाप को एक बार हफ्ते में कह दिया करो कि यार बहुत महान आदमी हो, इतना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, कोई दूसरा खर्चा कर देगा ना इतने साल, एक किडनी ले लेगा तुमसे, तुम ट्राई करके देख लो। लेकिन हम अपने माँ बाप को थैंक यू नहीं कहते। 4 काम करो, अवेयरनेस बढ़ाओ, एक डायरी ले लो आज जाके, कोई बात नहीं, कभी कभी शेड्यूल टूट जाएगा, कोई बात नहीं, कभी नहीं कर पाओगे, कभी नहीं याद आएगा, कोई बात नहीं, जब याद आए वहां से शुरू कर दो, कोई बात नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं कि मुझे 2 दिन याद ही नहीं था। 2 दिन तुम जिंदा थे, तुम्हें याद है? हाँ, तो तीसरे दिन से शुरू कर दो, फिर चौथे दिन से शुरू कर दो। एक डायरी ले लो, पर डे शाम को बैठते वक्त तुम ये दो लिखो उसमें कि आज मैंने खुद को कितना समय दिया, और जिस दिन तुम खुद को 10 घंटे देने लगोगे उस दिन तुम्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं बचेगा। उस दिन तुम्हें कोई टक्कर देने वाला नहीं बचेगा। 10 घंटे खुद को अगर देने लगोगे तो उसमें पढ़ाई भी है, जिम भी है, एक्सरसाइज भी है, सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, माँ बाप से नहीं लड़ना है, टीचरों से नहीं लड़ना है, इन 3 आदमी से लड़ना ही नहीं है। भले इनकी बात तुम मत मानो, पर इनसे लड़ना नहीं। माँ बाप जो कह रहे हैं सही, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा हूं। जब मैं 7 महीने ऋषिकेश रहा, मेरे पिताजी को छोड़कर मुझे कोई 1 रुपया देने नहीं आया, वरना मेरे कमरे पे लोग 50-50 लोग शाम को बैठ रहे हैं, अंडा करी बन रही है और राजनीति पे डिस्कशन हो रहा है, ठेका हो रहा है, और जैसे ही मैं हारा सब गायब। 7 महीने मेरे पिताजी रेगुलर आते थे ऋषिकेश पैसा देने के लिए, और मैं उनसे कहता था मैं कुछ नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुमको पैसा आके देता रहूं। और महीने में बीच बीच में गांव के लोगों को भी भेजते थे बहाने से कि जाओ तुम कहते ना हम घूमने आए थे। तो 1 महीने का आदमी आया तो उसने कहा मैं घूमने आया था, मैंने मान लिया। दूसरे महीने जब वो आया, मैंने कैसे कहा मैं घूमने आया था, मैंने कहा तुम भिख मंगे, तुम्हारे पास पैजामा में नाड़ा डालने का पैसा नहीं, तुम ऋषिकेश घूमने आओगे? तब बताया अरे भैया आपके पिताजी ने पैसा दिया है जाने के लिए। सोचो माँ बाप कितने महान होते हैं। टीचर, ये जितने तुम्हारे टीचर ये सब तुम्हें बनाना चाहते हैं, क्योंकि टीचर की इज्जत स्टूडेंट से होती है। कौन जानता द्रोणाचार्य को अगर अर्जुन नहीं होता तो? ये तुम लोग की आदत पड़ गई ना, हाय सर गुड मॉर्निंग, पैर छुआ करो जाकर अपने टीचरों को, जो जहां तुमको मिल जाए, बाजार में मिल जाए, कहीं मिल जाए। मैं पढ़ाई नहीं करता था, मैं अपने टीचरों का पैर और उनके आशीर्वाद लगे, भले मुझसे नाराज रहते हो, लेकिन अब किसी का पैर छू लोगे तो उसके दिल से तो अच्छी बात निकलेगी ना। 3 लोग तुम्हारा भला चाहते हैं, क्योंकि 3 आदमी का गौरव तुम्हारे ऊपर टिका है, एक माँ, एक बाप, एक शिक्षक। इन तीसरे के अलावा कोई अगर चौथा तुम्हें मिल जाए तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, और ना मिले तो इतनी ताकत पैदा कर लो कि मजबूर कर दो तुम्हारे लिए सोचने पर। जब तक कमजोर हो तब तक साधना करो। क्यों सोसाइटी में कूद कूद के जा रहा है? शादी में गया भैया हमको कोई पानी नहीं पूछा, कलेक्टर हो? यहां ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता। एक मंदिर है उनका पुष्कर में, वहां कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मनौती पूरी नहीं होती। सब मनौती वाले मंदिरों में जाते हैं कि भैया उस मंदिर में गए थे, 4 हमको 5 लड़का हो गया। यूटिलिटी पैदा करो यार, फालतू का दिमाग क्यों अपना खराब कर रहे हो? ये मुझे नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, वो मुझे नहीं रिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। जिसकी उपयोगिता उसका महत्व। कभी किडनी पे गाना सुने हो? लीवर, पैनक्रिया, कभी किसी सुना हो कि तुम मेरी किडनी में रहती हो? दिल में
पैनक्रिया फेल हो जाए, ठीक है, एक्सरसाइज कर लो, इंसुलिन ले लो। किडनी फेल हो जाए, ट्रांसप्लांट करा लो, डायलिसिस। लीवर ट्रांसप्लांट। मन कोमा में है तो भी 20-25 साल आदमी पड़ा रहेगा, लेकिन अगर हार्ट फेल हो गया तो खत्म। जिसकी जितनी उपयोगिता उसका उतना महत्व। इसलिए जीवन में सब कुछ छोड़कर अपनी यूटिलिटी पे ध्यान दो। सब। और बड़ा प्यारा समय तुम्हारा, इतना प्यारा, मतलब ये समय तुम ये जान लो कि जबरदस्त समय से गुजर रहे हो। सब कुछ करो, सब कुछ करो, पर वो जो तुम्हारा दिमाग है वो गोल पे रहना चाहिए। तो अवेयरनेस, फाउंडेशन, प्रिपरेशन, प्रैक्टिस, साधना और रिस्पेक्ट, इतना काम करो आराम से। शुरुआत आज से करो, टेंशन मत लो। लर्निंग टेक्स टाइम। कोई भी काम साइकिल सीखे थे तो एक दिन में सीख गए थे, टाइम लगा था। तुमको डिसिप्लिन में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। पर एक बार जब तुमने साइकिल चलानी सीख ली, अब हाथ छोड़ के चलाते हो, साइकिल की गद्दी पे खड़े हो जा रहे हो, स्टंट कर रहे हो, गिरे दोनों हाथ टूट गया, वो एक अलग बात। हमारे इलाहाबाद में एक दरोगा थे, बहुत खूंखार दरोगा। तो अगर वो किसी को साइकिल देख ले हाथ छोड़ के चलाते हो तो एक हैंडल ही कटवा दे, क्या जब पकड़ना ही नहीं है तो। अक्सर लोगों की आदत थी, WH था वुमेन हॉस्टल, तो वहां लोग हाथ छोड़ के साइकिल चलाते थे, वो वहीं बैठा होता था, रोक लेता था, कहा ये हैंडल काट दो। एक बार हम लोग खाना खा के घूमने निकले, पकड़ लिया, कहाँ? बोले सर वो खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं। कहा गाड़ी में बैठाओ उनको। तो समझ लो कानपुर से बिठाया और रनिया ले जाके छोड़ दिया। रात में 2 बजे का आराम से हजम करते हुए आप, और सब बारबूटा पहने हुए लड़के, और उस वक्त कच्चा बनियान गिरोह चल रहा था। पता लगा गाय वाले पकड़ ले तो और मारे कि भैया कच्चा बनियान गिरोह जा रहा है। न ट्रक वाले, किसी ने गाड़ी ही नहीं रोकी। उसके बाद कोई बाहर घूमने गया ही नहीं। बोले भैया घर में वज्रासन कर लेंगे बैठ के, बाहर घूमने नहीं जाएंगे। तो अगले सेशन में हम कोशिश करेंगे कंपटीशन रखें करंट अफेयर्स का, न्यूज़पेपर बेस्ड। तुम्हारा कोई सवाल हो तो बताओ, पूछो। सर हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। ऐसे में हमारे अंदर ये ठहराव नहीं है कि क्या हमारी एक्चुअल में चाहिए या फिर हम लोग एक हाई स्कूल देखिए इंजीनियरिंग, मेडिकल और यूपीएससी कोई भी चूज कर सकते हैं। देखो ऐसा है कि जब तुम विकल्प लेते हो, विकल्प जैसे 5 बॉलीवुड की एक्ट्रेस निकालो और फिर पूछो इसमें से किससे शादी करनी है, तुम कभी डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। जहां विकल्प है वहां कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कौन पैदा करता? विकल्प कि ये ऑप्शन है, बढ़िया है, ये भी अच्छा, इसका बाल बड़ा बड़ा, आंखें बहुत अच्छी है। तो तुम अपने चॉइस इंटरेस्ट को दो। तुम क्या सोचते हो, किसी को आईएएस बनते हुए देख लिए, 4-5 लोग गन लेके जाते, तुमको लगा यार आईएएस बनना चाहिए। दूसरे को देख के क्यों कर रहे हो? जैसे मैंने कहा, टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन इन दिस कंट्री, सबसे एक्सेलेंट प्रोफेशन। कोई भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, कोई भी हो, सब टीचर के रास्ते से ही निकलते हैं। तो जहां से पूरी कहानी निकल रही है, तुम विकल्प छोड़ दो। तुम जब देखते हो कोई लड़का तुमको, तुम्हारा दोस्त बोल दिया कि कनाडा में रह रहे हैं, 2 करोड़ का पैकेज है, लो, तुम्हारे सामने एक विकल्प और आ गया, विकल्प खत्म कर दो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। अभी समय सर बेसिकली एक सबसे लाइक बॉडी को लगती है सर कि क्वेश्चन ट्रेनिंग करते रहना चाहिए। एवरी पेज पे थ्रू जा रहे हैं एनसीईआरटी के,
क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप कैसे इस चीज को अप्रोच करते थे आपके टाइम में कि क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे करते थे? पूरे आपने पेज पढ़ा। नहीं, जैसे मैंने एक चैप्टर लिया, हमारा एक टीचर है, तो मैं जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया तो मैं उनसे मिलने गया, मैंने कहा सर क्या पढ़ना है इसमें? तो उन्होंने कितनी प्यारी बात बताई। बोले यार देखो, जैसे पहला चैप्टर है 18th सेंचुरी इंडिया, तो अंग्रेजों ने हम पे कब्जा किया, किस सेंचुरी में किया? 18th। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। तो हम पे अगर कब्जा हुआ यानी हम कमजोर रहे होंगे। भाई कौन आदमी कब्जा होगा? जो कमजोर होगा। तो उन्होंने कहा पहला चैप्टर तुम्हें यह बता रहा है कि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो भारत की राजनीति कैसी थी, भारत का समाज कैसा था, भारत का संस्कृति कैसी थी। तब तुम्हारा एक पिक्चर बनेगा कि अरे यार 1739 बैटल ऑफ करनाल, मुगल बादशाह को तो बहुत मारा इन लोगों ने, ये मराठा सब आपस में लड़ रहे हैं, एक पिक्चर बन गई ना। तब तुम्हें पता चला कि यार ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितनी आसानी से इस देश को जीता। तो हर चैप्टर तुम्हें कुछ बताना चाह रहा है। तो जब तुम वो चैप्टर शुरू करो तो उस पर वो क्वेश्चन फ्रेम कर दो कि 18th सेंचुरी इंडिया हमें यह बताना जा रहा है कि भारत पर अंग्रेजों की विजय से पहले भारत की कंडीशन। तो जब वो चैप्टर खत्म होगा तो तुम्हें पॉलिटिकल कंडीशन क्लियर रहेगी, सोसाइटी की कंडीशन, कल्चर की कंडीशन, बस वो पिक्चर बनता चला जाएगा। जो लोग बिना क्वेश्चन फ्रेम किए पढ़ते हैं वो जीवन भर पढ़ते हैं। तो हिंदुओं को तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुसलमानों को बहुत चिंतित रहना चाहिए। हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करता है, इस जन्म में आईएएस नहीं बना अगली बार बन जाएगा। लेकिन मुसलमानों को बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए, उनके पास एक ही जन्म है। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो क्वेश्चन फ्रेम करो कि ये टॉपिक मुझे क्यों पढ़ना चाहिए और या पढ़ने के बाद मुझे क्या पता चलेगा। जर्मनी हार गया सर, बॉम्ब बना नहीं था, बॉम्ब बन गया, जापान पे गिरा दिया सर। आप अगर इसको देखें क्वेश्चन बनाते समय कि अगर मैं ओपेनहाइमर होता तो क्या मैं बॉम्ब बनाता ऐसे जाके? कोई और कई साइंटिस्ट नहीं बना रहे थे, ओपेनहाइमर को ही पता था कि एटॉमिक के बारे में उसी के बारे में सोच है। तो क्या सर आप अगर आपको फ्यूचर देखिए, आपने पास देखिए आपको समय था, तो सर आप उस सिचुएशन में कैसे करते? जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन आप कैसे बनाते? देखो ऐसा है ना, मनुष्य की जो सबसे बड़ी आकांक्षा है वो शक्तिशाली होने की है, सबकी, तुम्हारी नहीं है हम सबकी है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, जर्मनी को कॉलोनीज चाहिए थी। वो तो अगर यहूदी नहीं भागे होते तो जर्मनी सुपर पावर होता। अब चूंकि ज्यूज चाहते थे कि मेरी कंट्री पावरफुल हो जाए तो मेरा बाजार, मेरी इंडस्ट्री, मेरा मार्केट, तो वो उसका रास्ता खोज रहे थे कैसे। लेकिन हिटलर की गलती से ये सारी लॉबी पहुंच गई यूएस। अब जापान ने क्या किया? तो एटम बॉम्ब गलत नहीं बना, सही बना, बहुत अच्छा। जापान ने क्या किया? अब अमेरिका 1926 से मनी लेंडर बन गया, यंग प्लान, दुनिया को पैसा बांटने लगा अमेरिका। तो मनी लेंडर को, अब मान लो तुमने कानपुर की बाजार में 10 करोड़ रुपया बांट दिया 10% ब्याज पे। अब इंटरेस्ट लेने जाओगे तो साइकिल पे बैठ के जाओगे, गायब कर देंगे तुमको सब। इंटरेस्ट लेने कैसे जाओगे? 4 फॉर्च्यूनर में, 4 फॉर्च्यूनर, 2 बोलेरो, एक पीछे टाटा सुमो, तुम्हारे साथ फॉर्च्यूनर में एक ब्लैक बैठा हुआ है 6 फीट की तलवार लिए हुए। तो तब तुमने गुप्ता जी की दुकान पे गाड़ी रोकी। गुप्ता जी, जी भैया। 1945 तक पहुंचते पहुंचते अमेरिका बन गया था महाजन। उसको पूरी दुनिया को मैसेज देना था कि मेरा पैसा मत मारना। तो वो तो होना ही था, वो तो नेचुरल फिनोमेना थी। तभी तो देखो तुम, रशिया ने बाद में क्या किया? कंपीट किया अमेरिका को कि पूरी दुनिया में से कोई मेरी तरफ रहेगा ही नहीं, क्योंकि एटम बॉम्ब तो अमेरिका के पास है। हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया। हाँ, फिर उसने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया। फिर उसने कहा चाइना से, माओ से, कि तुम टेंशन मत लो, ये हमारे पास है, मारेंगे खींच के। ठीक है सर, सिविल सर्विसेज में वो मीडियम मैटर करते हैं। देखो, मीडियम कुछ मैटर नहीं करता। मीडियम कब मैटर करता है? जब तुम इंग्लिश में लिखते हो ही वॉज सिंगिंग अ वेरी गुड सॉन्ग, हिज नेम इज शीला,
His house is in Kanpur नियर सब्जी मंडी। और हिंदी में जब तुम लिखते हो कि उस अब शी ही तो लिखोगे नहीं, सी लिखोगे ना। और हिंदी में जब तुम लिखते हो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका बहुत ही बदतमीज मुल्क है, तुम्हारा एक्सप्रेशन, तुम्हारी लैंग्वेज। अब तुम इंटरव्यू देने गए, तुमने कहा सर स्टालिन को टपका दिया रशिया ने। वो पिक्चर लगे ना मुन्ना भाई MBBS, यस सर। उसमें यही तो दिखाया कि आदमी की भाषा उसकी क्लास से डिसाइड होती है। मुन्ना को देखो, राउडी है ना, तो राउडी वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करता है वो। तो तुम्हारा एक्सप्रेशन, तुम जो कहना चाहते हो वो जिस भाषा में तुम अच्छा कह सकते हो। अब जैसे हम हैं, हिंदी में चुटकुले सुनाते हैं, अगर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे तो हम ही चुटकुला हो जाए, क्योंकि चुटकुले में शब्द से ज्यादा भाव माने रखते हैं। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अच्छा रखो और भाषा शैली अच्छी रखो। गुड आफ्टरनून, बताओ। देखो बेटा, जिसके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार है, एस्केप वेलोसिटी, उस लड़की ने मौका मिला, उसने मौके को खींच लिया तुरंत। तभी तो गब्बर सिंह तुम्हारे लिए कह के गया था, जो डर गया समझो मर गया। 1 अरब 50 करोड़ लोग इस देश में हैं, 1 अरब 50 करोड़। अब जो लड़ेगा बस वही जिएगा। अब अगर कोई कुछ बहाना बनाएगा कि साहब हम डर गए थे, साहब डर गए, पीछे करो चुप, साहब हमको ऐसा घबराहट हो रही थी। इसीलिए मैं बार बार इस बात पे ध्यान देता हूं कि आंतरिक शक्ति को पैदा करो। इतनी भीड़ बैठी है और कोई तुम्हें मारने थोड़ी जा रहा है, और तुम्हारा ही कॉलेज है, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे दोस्त, एकदम बोलो। तो इसको कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उस पर तुम कभी ध्यान ही नहीं देते। तुम सोचते हो कि पर्सनालिटी IAS बनेगा तो बन जाएगी, बिल्कुल नहीं। पर्सनालिटी होगी तो IAS बनोगे। हाँ, मेरा भी। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, माइक तुमसे नाराज चल रहा है। हेलो। हाँ हेलो। तो क्या है? तुम्हारा वीकेस्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग कौन सा है? मैथ्स। जीरो का क्या इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स में? जीरो का मैथमेटिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है? क्या? 2 बताओ। घटाएगा तो है ही नहीं, उसकी वैल्यू वैसे ही रहेगी। 1 के पीछे 0 देखो, उत्तेजना में जवाब नहीं देना चाहिए। तुमने ईगो पे ले लिया सवाल को, फंस गए तुम। तुमने कहा पीछे लगा दो 0 को तो वैल्यू घटा देगा। देखो यही है, तुम तुरंत ताऊ में आ गए। कहाँ घर है कि कानपुर वाले के आदमी को कानपुर में चुनौती दे रहा है उसके कॉलेज में। ना तो तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है ना कमजोर है, तुम ईगो से बहुत ग्रसित हो। इससे बाहर निकलो तुम। समझ क्या नहीं समझ में आता? किसमें? आ गया। देखो तुम्हारे ऊपर माइक भी नाराज है, तुम इतना ऐठन में पकड़े हो उसको। देखो ऐसा है ना, मैं बताऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? रौनक। देखो कोई बात नहीं, होता है, वीक और ये सब चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं।
शायद तुमने हिस्ट्री पढ़ने का अप्रोच नहीं पता किया होगा या तुम्हें किसी ने बताया नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल भारत विभिन्नतावादी देश है, उसकी वजह है ज्योग्राफी, अभी मैंने तुम्हें बताया। लेकिन हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसकी वजह इकोनॉमी है। तो भारत एक कंट्री यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब इस कंट्री में जो भी शासक होगा उसको सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। ये बात पहली बार किसने प्रूव की? अशोक ने, धम्मा की नीति लेकर आए। दूसरी बार किसने प्रूव की? अकबर ने। तो अब जो हमारे शासक हैं, अब जो भारत को जो चला रहे हैं, उन्हें इस बात पे ध्यान देना होगा कि इस डाइवर्सिटी को साथ लेकर ही चल सकते हैं। हिस्ट्री को हमने क्या किया इस कंट्री में, रटने का विषय बना दिया। रटना है ही नहीं, रेलेवेंसी है भाई। सारे जितने भी आक्रांता है सब पंजाब होते हुए आए। एक आदमी ने खैबर से बोलन से घुसने की कोशिश की, मोहम्मद गौरी ने, लेकिन वहां से वो घुस नहीं पाया। ज्योग्राफी, तुम कभी गुजरात का एरिया देखोगे ना तो वहां रन ऑफ कच्छ है, मार्शी दलदल एरिया है। उसने सोचा मैं गुजरात से भारत में एंटर कर जाऊं, वो वहां के दलदल में फंस गया। तो जब तुम किसी चीज को रेलेवेंसी के हिसाब से पढ़ते हो, रेलेवेंसी कनेक्ट करके पढ़ते हो, तो इंटरेस्ट पैदा होता है। कोई बात नहीं, तुम आओ किसी दिन हमसे क्लास में। जब मेरी 25 तारीख से यहाँ क्लास है, आओ हमें मिलो। 25 सितंबर से मेरी यहाँ पे क्लास है इकरा में, तो आना, मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे पढ़ना है। बैठना मेरी क्लास में। किसी का ईगो हर्ट कर दो। अपनी औकात जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है किसी का ईगो हर्ट कर दो। किसी टीचर का कि मास्टर साहब तुमको जितनी ज्योग्राफी आती उतना तो मेरा इकबाल को आती, वो तुमको तुरंत 10-12 क्वेश्चन पूछ लेगा, बस आ गई तुम औकात में तुरंत। अगर बता ले गई तो ठीक है। उससे भी अच्छा तरीका है, टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं, तुम्हारे साथ दोस्त कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हो। बहुत सारी साइट्स आजकल ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेती हैं, इवैल्यूएशन करती हैं, बहुत सारी। अब तो तुम्हारा जमाना ऐसा है जहां तुम जो चीज चाहोगे अवेलेबल है। मतलब कई सारी साइट्स ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लेती रहती हैं, चैप्टर वाइज, मॉड्यूल वाइज, वहां तुम कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। मेरा प्रश्न ये है कि जब जैसे सिविल सर्विस में 2 साल लगते हैं प्रिपरेशन में, उस समय हम अपने माता पिता को भरोसा कैसे दिलाएं मुझे अभी थोड़ा और समय चाहिए। मान लो मैं असफल होता हूँ, उसके बाद मैं उनको भरोसा कैसे दिलाऊँ मुझे अभी और थोड़ा और समय चाहिए इसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उसमें और सारे क्वेश्चन समाज के आते हैं कि ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, कम से कम एक दुकान ही खोल लिया, बच्चों को। देखो, माँ बाप को कभी ना समझा पाओगे, उनको समझाने वाले एक पूरी नाटो की गैंग होती है। उस नाटो की गैंग में कुछ परमानेंट सदस्य हैं, उसमें एक तुम्हारी बुआ है। वो तुम्हारी माँ से तो कुछ नहीं कहेगी, तुम्हारे पापा को जाके चाबी भर देगी धीरे से कि रामा देवी पे खड़ा था एक लड़की से हंस हंस के बतिया था, भैया बताना आप दे रहा है। उसकी एक परमानेंट मेंबर तुम्हारी मौसी है। ये सारे उसके मेंबर हैं। ये पंप करेंगे तुम्हारे माँ बाप, मिनट मिनट पे पंप करेंगे। तुम्हें करना क्या है कि इनको उलझा देना है, इनके बच्चों की तारीफ कर देनी है कि मौसी तुम्हारे लड़के को बाबा जी देखे थे, हम जा रहे थे साथ में, कहीं प्रधानमंत्री बनेगा, दबा दो। मौसी को लगा लड़का बड़ा शानदार है, हमारे लड़के को प्रधानमंत्री बना रहा है। और जब तक मौसी सपने से बाहर आए निकलेगी तब तक तुम IAS बन चुके होगे। देखो, जो भी तुम्हें छेड़ रहा है, जिंदगी में एक बात याद रखो, पहले आप तो किसी से उलझो मत, सबसे दूरी बना के रखो। लेकिन जो तुम्हें उलझा रहा है उसको चंद्रयान 4 पे बैठाओ। लड़ो मत किसी से, अपनी ऊर्जा का व्यय मत करो, सबको जवाब मत दो। हम देखते हैं ट्विटर पे लोग लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। सबको जवाब नहीं देना है, सबसे झगड़ा नहीं करना है, सबको दिखाना नहीं। अब तुम गली से जा रहे हो, छत पे कुत्ता भौंक रहा है, क्या कर लोगे? और अगर तुम पलट के भौंके तो वो बहुत हंसेगा। इस समाज में टैलेंट क्या है?
ये तुम्हारा टैलेंट क्या है? तुमको हर आदमी छेड़ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगाओ अपने घर में। उस आदमी की जाति कभी मत देखना, वरना तुम उस आदमी से कुछ सीख नहीं पाओगे। और जब तुम्हें दुनिया में चुनौती दिखाई पड़े तो उस आदमी को चेहरा देखो 5 मिनट की, इससे ज्यादा है, फिर तुम्हारी चुनौती मेल्ट कर जाएगी। जैसे तुम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, रिपोर्ट कार्ड देखे एक सब्जेक्ट में फेल, तब तक पीछे से एक तुम्हारा दोस्त आ गया, कहा मैं 3 में हो गया, तुम्हारा दुख गायब, तुम्हारा दुख तुरंत गायब। तुम घर पहुंचे, पापा ने पूछा रिजल्ट कैसे, तुमने कहा वो वर्मा जी का लड़का 3 विषय में फेल है ना। तो पहले यार तो अपनी एक व्यक्तित्व बनाओ, थोड़ा सा आइसोलेट रहो। जब राजा बनने का सपना देखो तो जनता से दूर रहो अभी से। जनता का काम है बैठी है दिन भर, मोदी जी ऐसा कर दिए, कुछ करना नहीं है। जनता मतलब एक प्लेट दही जलेबी खिला दो, तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे, तुम उसका लोड लेते हो। इसीलिए तुम डीएम बनोगे तो यहां कानपुर में डीएम बंगला है, एसपी का तुमको अलग रखा जाएगा, वहां आम जनता आ नहीं सकती है। बाहर आके खड़े कि बाबूजी साहब से मिलना, बट साहब से मिलना, साहब के गांव के हो तो तुमको वो ट्रेंड। पर इसका मतलब ये नहीं कि सबको गाली देते हुए चलना है, बदतमीजी करना है कि हम राजा है बहुत मारेगी स्कूल की पब्लिक। बहुत हिसाब से रहना है, कहने का मतलब ये है। और सारी चुनौतियों को बहुत बैलेंस्ड माइंड होकर हैंडल करना है, आराम से, सुकून, है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं। तुम क्यों सोच रहे हो तुम हार जाओगे? भाई हमारे पिताजी थे, उन्होंने कभी हमको कुछ नहीं, माता जी तो खैर बहुत उल्टा सीधा बोलती थी, पर कोई बात नहीं, वो उनको भी कोई पीछे से परेशान करता था। माँ बाप बेचारे कुछ नहीं कहते, ये जो समाज है ना ये उनको बहुत परेशान करता है। बताओ। दोनों किताब लो और एक रस्सी लो और दोनों को बांधो ऐसे भाई। किससे नहीं हो रही? टेक्नोलॉजी इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब तुम देखो फेसबुक पे एक पेज को शेयर करो अध्यात्म का, उसके बाद तुम्हें वही पेज आएंगे सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी जो है ना हमेशा ह्यूमन लाइफ का अंग हो जाती है। उसमें देखो 5G आ गया। अब तुम्हारी जो जनरेशन है और हमारी जो जनरेशन और यहाँ जो तुम्हारे टीचर है उनकी जनरेशन, एजुकेशन सिस्टम एकदम अपोजिट। तुमने ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई की, हमारे ऑनलाइन जैसा कुछ था नहीं। हमारे टाइम के शिक्षक बहुत मार मारते थे दौड़ा दौड़ा कर। एक तो किसी से डरते नहीं थे वो, माँ बाप से का कोई डर होता नहीं था, माँ बाप, और मारते भी बहुत साइंटिफिक थे। साइंटिफिक इस तरह से मारते थे, यहां पे मारते थे, यहां कान आंख पे नहीं मारते, यहां ऐसे करो, अगर हाथ पीछे कर लिए और मारते थे। और फिर मारते थे, फिर शाम को घर भी आते थे और फिर घर में पिताजी से कहते थे ओझा जी आपका लड़का, आपका। पिताजी को चढ़ा दिए 10-20 फैट, वो भी मार दिए कि तुम जो है। तो अभी क्या है ना कि तुम्हें जो है उसके लिए मनन करना पड़ेगा। आज मैंने अभी क्यों शुरुआत में कहा मोबाइल छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर दिन में 8 घंटे पढ़ते हो तो बहुत पढ़ते हो, बहुत। 8 घंटे तो मैक्सिमम है। और हमेशा बैठ के मत पढ़ो, कभी खड़े होकर पढ़ लो, कभी घूम कर पढ़ लो। लेकिन उसको जो तुमने, जैसे हमारे शरीर में 2 पेट है, एक ये और एक ये, जितना तुम पढ़ते हो उसको हजम करना बहुत जरूरी है। आज का जो लड़का है ना उसने पढ़ाई तो की, मनन छोड़ दिया। तो जो मनन का काम होता था वो कनेक्शन का काम होता था। जैसे मैंने अभी तुमसे कहा I = I, 1853 इंफ्रास्ट्रक्चर, 1854 इंडस्ट्री, यानी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहां। अब ये चीज डायरेक्टली किसी किताब में नहीं लिखी, तो ये किसका आउटपुट है? सोचने। तो जब वो तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करोगी तो शुरुआत में पेन होगा तुम्हें, शुरुआत में हर चीज पेन देती है,
ऐसे होती है शुरुआत, ये वाला फेज होता है। फिर जब तुम यहां पहुंच गए, सीख गए, फिर वो पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिस बन जाता है। एक किताब पढ़ो, एक, जैसे तुमने लक्ष्मीकांत पॉलिटी की पढ़ ली, उस पर कमांड कर लो। आर्टिकल 19 बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा, तुमने भी पढ़ा होगा। उसमें 6 पार्ट और है, याद है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम सिटीजन हो इस देश के, तो कहीं भी बस सकते हो, बसने का अधिकार, कहीं भी घूम सकते हो, स्पीच बोल सकते हो, संगठन बना सकते हो। बस एक सिटीजन वर्ड तुम सोच लो कि सिटीजन के पास क्या क्या राइट होना चाहिए, वो सब उसमें दिया हुआ है। तो तुमने पढ़ा और तुमने रटने की कोशिश की, तुमने सोचने की कोशिश नहीं की। एक सिटीजन के रूप में तुम तमिलनाडु जा सकती हो ना, तो तुमने घूमने का अधिकार है। एक सिटीजन के रूप में तुम असम में बस सकती हो, तुम्हें बसने का अधिकार है। एक सिटीजन के रूप में तुम्हें व्यवसाय करने का अधिकार है। तो जो जो कंपलसरी है सिटीजन का, वो 19 में है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक मिनट, न्यूज़पेपर तुम्हारे पास है। आइसोलेशन का मतलब पता है क्या? आइसोलेशन 1787 में अमेरिका पैदा हुआ, ठीक? 1787 में पैदा हुआ, 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई, और 1789 से 1945 तक पूरा यूरोप जलता रहा। 200 साल अमेरिका आइसोलेशन में रहा। उस आइसोलेशन को उसने इस्तेमाल किया। जब तुम अनायास समाज में घुसते हो, आज देखो बाहर कितने सारे ड्रामे चल रहे हैं। कोई कह रहा है ये धर्म खराब है, कोई कह रहा है ये लोग खराब है। कल एक लड़के ने मुझे शाम को फोन किया, पता नहीं कहीं से फोन किया। मैंने कभी कभी मैं मूड में रहता हूँ, चलते वक्त फोन उठा लेता हूँ। कहा नमस्कार, मैंने कहा नमस्कार। कहा मुझे आपसे अखंड भारत के विषय में बात करनी है। मैंने कितना पैसा है तुम्हारे पिताजी के पास? कहा सर आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हूं। हम कह रख दो, नहीं तो फोन में घुस के मारेंगे तुमको। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। नहीं बैठो, हम बताएंगे कब छूना। बैठो 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 बैठो, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम बताएंगे तुम्हें पैर छूने की। और बताओ सर, ये क्वेश्चन है क्योंकि कुछ लोग फैमिली में या कोई ऐसे होते हैं, कहते हैं कि जो तैयारी करते हैं वो डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो इंजीनियर आईएएस की तैयारी बन जाते हैं। उनका IQ लेवल इतना ज्यादा होता है कि तुम्हारा IQ लेवल उतना नहीं है। आराम से इतना देर पंखों का गिर गया तो चोट लग जाएगी। लोग आराम से बोलो। उनके IQ लेवल के हिसाब से तुम्हारा IQ लेवल कम है, क्योंकि वो इतना पढ़ के जाते हैं। तो तुम कैसे दोगी? कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी? और नहीं कर पाई तो क्या करोगी? तो देखो लड़कियों के लिए तो बड़ी सुविधा है। ऐसा बात जब तुमसे कोई बोले, महीने में एक दिन बाल आगे किए और लगे नाचने ऐसे ऐसे करके, ग्लास खींच के मार दिया और बाल्टी उठा पटक दी, मोबाइल पे खड़े हो गए, दोबारा कहेंगे। पर किसी जमाने में, जो तुम बात मुझसे कह रही हो, किसी जमाने में अंबेडकर को भी तो लोगों ने कहा होगा कि अछूत का लड़का। उस अछूत के लड़के ने भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया। तुम सुन ही क्यों रहे हो किसी की बात? लोग वो आखिर ये समाज है किस लिए? मजा लेने के लिए। जब तुम ऊपर चढ़ोगे ना, वो मजा लेगा तुमसे, गाली दे। जब मेरे सारे अटेम्प्ट खत्म हुए, मेरे घर के दीवार पे लिख दिया कमिश्नर साहब। और गांव में कोई बुजुर्ग मुझे कुछ नहीं कहता था, बच्चे जब मैं गांव जाऊं कहे कमिश्नर अंकल। अब उस वक्त तो बहुत दर्द हो,
फिर जो है मैंने कहा नहीं यार कोई बात। अब आते हैं सब मेरे घर, भैया हमारे लड़के को भी थोड़ा पढ़ा दो। तो ये समाज जो है ना, उसका ये काम है, वो तुम्हारी क्षमता को चेक करता है कि तुम लड़ने वाले हो कि मरे हुए हो। नहीं तो सब आके नहीं खड़े हो जाएंगे चौराहे पे, हम भी राजा बनेंगे, मारे चाटा बाकी लोग भाग गए। तो तुम जो सुन रहा है, तुम्हारा समय है, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही जो मैंने तुमको तरीका बताया। और सर मुस्लिम लड़कियों के लिए कि मतलब फैमिली में तो नहीं, लेकिन हमने कई जगह देखा है कि वो लोग अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते। तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हारे घर वाले तुमको पढ़ा रहे हैं ना। तुम कोई समाज सुधारक हो, माइक ले दो, छोड़ो। अब तुम मत बेट अपने ऊपर ध्यान दो। नहीं, अपने ऊपर मतलब फैमिली में जो हमने कहा कि हमको कॉलेज जाना है, नकाब में जाना है, तो फैमिली वालों ने मना कर दिया कि नहीं नकाब में नहीं जाना, क्योंकि नकाब में होगी तो आगे नहीं कर पाओगी, क्योंकि जो नकाब नहीं पहनते। फैमिली की बात माननी है। अगर हमारे घर वाले हमसे कहते हैं कि अब हो जाओ, तुम नकाब पहन के पढ़ाया करो, तो हम नकाब पहन के पढ़ाया करो। फैमिली की बात का विरोध नहीं करना है। और कैसे करना है, कैसे करना है, करने का भी एक तरीका है। अब मान लो हमारी भक्ति ने हमसे कहा तुम नकाब पहन के पढ़ाओ, नकाब पहन के 50 करोड़ रुपए लेकर रख दी। अरे वाह बहुत अच्छा, अब उतार दो, उतार दे। अब मैं उससे कह दूंगा कि यार अगर नकाब उतार के पढ़ाऊं तो तुमको 100 करोड़ रुपए मैंने जला दो। इतना नहीं सोचते बेटा। इस दुनिया में बस तुम्हें यह देखना है कि तुम्हारी उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है, हर आदमी को तुमसे काम होता चला जा रहा है। बस अभी तो जब आदमी, मैंने कहा ना समाज ट्रायल लेता है, यहां सब दावेदार है। यहाँ रिक्शा वाला भी रात में पी लेता, कहता मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो पकड़ना पड़ता उसको, प्रधानमंत्री बनेगा। तो समाज क्या करता है ना, बैलेंस रखता है सोसाइटी पे। ये तो सब दावा ठोक दे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे, फिर लाठीचार्ज करना पड़ता है, पुलिस बुलाई आती है, मारती, बोले भैया ये सब अपने पे ध्यान दो, पढ़ाई करो चुपचाप। भारत की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनो और नए कानून पारित करो। क्वेश्चन ये था कि हम नकाब पहन के आईएएस बन सकते हैं या नहीं? एकदम एकदम एकदम, अगर कोई रोग है हमको बताना, एकदम बन सकते हैं। जैसा कि पेरेंट्स का ऑब्सेशन है कि जो ऑफिसर बनते हैं, जो भी काबिल बनते हैं, उनकी शक्लें ही अलग होती हैं, चेहरे ही अलग होते हैं। हाँ सर ऐसे काम बहुत पड़ते हैं सर, जैसे घर पे ही होता है कि ये क्या बनेगी, उनके चेहरे ही अलग होते हैं। तो सर पेरेंट्स को कैसे यकीन दिलाएं, चेहरा हम पर देखो। नहीं, देखो मैं बताऊँ, तुम लोग अगर बहुत गौर से अपने घरों को देखो, सुनना इस बात को गौर से, मतलब तुम कितने भी स्वस्थ हो जाओ, हंस पुष्ट हो जाओ, जब माँ तुमको देखेगी ना तो यही बोलेगी कैसे मरे मरे लग रहे हो। पता है इसके पीछे माँ बाप की एक बहुत बड़ी बात होती है। माँ बाप कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि माँ बाप की बच्चों को सबसे ज्यादा नजर लगती है। तो जब तुम अपने माँ बाप से कहते हो मैं आईएएस बनूंगी, कहते तुम्हारी शकल है चपरासी बनने की, तो पता है वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? कि उनकी नजर तुमको ना लगे, तुम समझी नहीं। वो अंदर से तो कह रहे हैं कि तेरी ही शकल है आईएएस बनने लायक, लेकिन उनको पता है कि माँ बाप की नजर लगती। तुम बहुत रेयर केस में किसी माँ को देखोगी अपने बेटा या बेटी को कहते हुए कि तुम बहुत स्वस्थ लग रहे हो, वो कभी नहीं कहती ही नहीं। उसके पीछे यही वजह है। सर जैसे किसी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो कभी कभी लगता है कि एग्जाम की तैयारी करें या नहीं, क्योंकि फेलियर का रेट ज़्यादा होता है। और कभी कभी फैमिली प्रेशर इतना होता है कि मन करता है कि तैयारी ना करें, और ये भी होता है कि डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो उसे कंट्रोल कैसे करें और सेल्फ मोटिवेटेड और सेल्फ सेंटर्ड कैसे रहें, प्लीज बताइए। ये सारा काम कर कौन रहा? मन। मैंने बीच में बोला, मैंने कहा 4 काम तुम में तुम्हारा मन तुम्हारे साथ रहेगा, पढ़ाई में रहेगा, लड़ाई में रहेगा, प्रेम में रहेगा, पूजा में रहेगा, और इसकी आदत है मजा लेने की। तुम आईएएस की तैयारी करोगे, कहेगा बेकार है, एमबीए की करो। तुम एमबीए की करोगे, कहेगा एसएससी,
तुमको जीने देगा ये? सारी दुनिया किससे परेशान, इसी से तो परेशान है। हमारे पड़ोस में एक भाई साहब रहते हैं, तो मेरी गाड़ी उनकी पार्किंग में मैंने खड़ी कर दी, जल्दी में खड़ी कर दी। वो आए, दरवाजा नॉक किया, तो गुस्से में बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। मैंने कहा कौन सी ब्रीड है? सोचो मन की दशा, उनको पता ही नहीं चला कि वो खुद को गाली दे रहे हैं। क्या देखो ये बदतमीजी कर रहे हो? मैंने कहा मैं, तुम्ही ने कहा। तो जर्मन शेपर्ड हो, शिट्जू हो, डॉबरमैन हो, क्योंकि हर ब्रीड की अलग विशेषता होती है। तो कौन सा? ये है मन। डायबिटीज के पेशेंट को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तभी तो सारा खेल यहीं से तो शुरू होता है। अगर तुम्हारे साथ है तुमको 4 बजे सुबह उठा देगा, और नहीं है तो 4 बजे से अलार्म बजेगा 9 बजे तक। अगर ये तुम्हारे साथ हो गया, तभी तो मैंने डॉक्टर अंबेडकर का एग्जाम्पल दिया कि बच्चे का मन कितना स्ट्रांग रहा होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं ध्यान करो, योग करो। संघर्ष बिना साधना के सफल नहीं होगा, क्योंकि शक्ति साधना करने से ही आती है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्कूल मैनेजमेंट का एक बार फिर मैं आपके स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल और यहाँ जितने भी गणमान्य टीचर लोग मौजूद हैं, मैं सबको धन्यवाद कहूँगा। आप सब लोगों को धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमें टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir, for answering our queries. Your words are providing us with a deeper understanding, and we are profoundly grateful for it. I am certain that the knowledge shared here will be guide us on our journey towards meaningful careers. Now, I would like to invite the coordinator of our career counseling and our pillar of support, our very own Professor Meet Kamal ma'am, to please address the auspicious gathering. Good afternoon. Please have your seats. Don't create any type of chaos. Our children has made a scenery for sir. It's its own pick. Thank you so much. Thank you. So, how's the Josh? मजा आया? जिनको सुनने के लिए हम लोगों ने इतना इंतजार किया, आज वो हमारे बीच, और अभी भी मन नहीं मान रहा कि ये माइक छोड़ के जाएं और वहाँ जाके बैठें। सर, बहुत ही अच्छा लगा। मैं समझ सकती हूँ कि कितना आप मतलब बच्चों को हमारे जो आपने एड्रेस किया, जो ऊर्जावान आपने अपना संबोधन दिया, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो हमारे माननीय ओझा सर, हमारे इकरा एकेडमी के शाह फैजल सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एंटायर टीम ऑफ इकरा जो कि यहाँ मौजूद है, सतीन जी एंड ऑल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे कॉलेज में के प्रांगण में आप लोग आए और हमारे बच्चों को इतना ऊर्जा से जो आपने संबोधन दिया, एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन जो बच्चों को आपने दिया, सर्वप्रथम तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई थिंक इकरा इज द रियल पावर ऑफ द कंट्री, बिकॉज इट्स रियली जनरेटिंग पावर ही नहीं। सो बिग क्लैप फॉर। और अगर इकरा के पास ओझा सर जैसे गुरु हैं तो आप समझ लीजिए ये इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है हमारे देश के लिए। हर साल कितने स्टूडेंट्स IAS, PCS या एलाइड सर्विसेज में आते होंगे और आप जैसे ही वो बच्चे होंगे। तो सर का तहे दिल से सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी पूरी क्राइस्टचर्च कॉलेज फैमिली की तरफ से जोरदार तालियां एक सर के लिए। तो जैसे आप लोग एक छोटी सी चीज, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आप लोगों के से, क्योंकि यू ऑल आर इन द टीनेज एज और टीनेज से आप और आगे मेच्योरिटी की तरफ आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे अपने शोना बाबू के लिए इतना टाइम देते हैं ना, वैसे अपनी पढ़ाई के लिए समय दो, पढ़ाई के लिए समय दो। संघर्ष जो वहाँ करते हो उसको पटाने में, उसको खुश करने में उतना समय अपने आप को यूटिलाइज करने में दो। 3 चीज़ें मुझे सर की बहुत अच्छी लगी और मैंने भी बहुत कुछ सीखा। यूटिलिटी, अपनी यूटिलिटी करना सीखो, अचीवमेंट, एंड देन कम इन पावर। शाइन द ग्लोरी ऑफ क्राइस्टचर्च कॉलेज। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am.
Now, as a part of culture and tradition of our Christchurch College family, we would like to facilitate our honorable guest in this series. Now, I would request Vice Principal Ma'am and Meet Kamal Ma'am to please come and facilitate our eminent Awadh Ojha sir. Now, I would like to request Arunesh sir and Ashish Dubey sir to please come and facilitate Director of ICRA Shah sir. I extend our heartfelt gratitude to Professor Meet Kamal Ma'am for giving us this amazing opportunity as well as the participant for being such a wonderful audience. With this, I Vaishnavi Dikshit and I Sundaram Misra take our leave and hand over mic to Abhishek, a student of Career Counseling Cell, to propose vote of thanks. धन्यवाद खुशी। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है। प्रणाम सर। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य, उप प्राचार्य, सभी प्रिय शिक्षकों एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा वंदन व अभिनंदन। आशा करता हूं कि यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने आज के कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि सिविल सेवा एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, करियर काउंसलिंग सेल का रिप्रेजेंटेटिव, आज के इस शुभ अवसर पर उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज का कार्यक्रम सफल हो सका है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे मंच के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे महाविद्यालय के प्रत्येक छात्र की ओर से पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय अवध ओझा सर का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनने की स्वीकृति दी। धन्यवाद करता हूं इकरा आईएएस के डायरेक्टर शाह फैजल सर का तथा मयंक सर का, सतेंद्र सर का कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे महाविद्यालय के लिए वक्त निकाला। सर, सच में आपके शब्दों ने छात्रों को बहुत ही प्रेरित किया है। हम कोशिश करेंगे कि आपके द्वारा बताई गई बातों पर अमल कर सकें। धन्यवाद करता हूं अपने महाविद्यालय के प्राचार्य जोसेफ डेनियल सर का तथा उप प्राचार्य सबीना बोत्रा मैम का कि उन्होंने इस कार्यक्रम की अनुमति दी तथा हर बार की तरह यह आशीर्वाद प्रदान किया। धन्यवाद सभी का, यहाँ पे उपस्थित रहे। जय हिंद, जय भारत।